response for the entire series. Thank you for the feedback as well as the speakers for sparing their valuable time. Today on 14th of April, on the birth anniversary of our Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, what better way to pay a tribute to him and discuss the topic of constitution and its linkages with GST. So thank you to our speaker for throwing light upon this, and today's learning session definitely is very much befitting to the occasion. So thanks and best wishes to all of you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Before I start with the session, a quick announcement. Jupiter key has been found. Anyone here? Key of Jupiter, a two-wheeler. All of you have your own keys. Even there's a cell phone, iPhone with the earpods. iPhone मिला है? No one? फिर मैं रख लेता हूँ. If no one. Okay. C.A. Pritam Maure sir, today's first speaker. He is an internationally recognized speaker, writer and advisor on GST and how to be future-proof. He has authored more than 15 books. That's what I was speaking with him before coming here. So how do he find so much of time to write so many books and being at different forums? He's also been invited as columnist for leading media houses, including Business Line, Asian Age, Business Standard, Deccan Herald, and the list goes on. He's addressed more than 200 conferences on GST in India, even out of India, at Oman, Bahrain, Kuwait, and at different forums. So it's indeed an honor to have you here. So I've heard his speech a couple of times, so definitely it is quite insightful, and he has a great way of connecting with the audience. So we are looking forward for that. I request our branch chairperson and other committee members to felicitate Sir with a token of love. Thank you, sir. Without further ado, now I request C.A. Pritam Maure sir to kindly continue with his session of Constitution of India and its linkages with GST. Over to you, sir. Rajitji, Pritesh, first for choosing such an amazing topic for the day, and particularly I think as all of you are aware, today is Dr. Babasaheb Ambedkar's Jayanti. So what a better way to pay tribute than discuss the constitutional provisions today. So I would say amazing day for an amazing topic. Friends, the first thing which will come to your mind would be कि खरच Constitution of India, correct, and GST के regarding हमने कितना discussion करना चाहिए करके. Is it really a topic जिसके ऊपर हमने 2 hours spend करने चाहिए, या कोई जो प्रैक्टिकल रिलेवेंट टॉपिक है जैसे ITCA, मिसमैचेस वगैरह, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन करना चाहिए. हर किसी के माइंड में क्वेश्चन रहेगा, and that is totally fine as well. When I was also approaching constitution or all its provisions, I also had the same thoughts कि सही में ये रिलेवेंट टॉपिक है या नहीं है. But let me tell you that ये जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 2 दिन का, एंड उसमें से ये टॉपिक ये इतना ज़्यादा रिलेवेंट है ना एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आप सबको पता है जीएसटी में ना मंथन चल रहा है. मंथन पता है ना, समुद्र मंथन. सीजीएसटी है, जीएसटी अथॉरिटीज दोनों जगह खींच रहे हैं, और बीच में जो पर्वत है वो टैक्स पेयर है. बराबर है. और अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ पॉइजन ही निकल रहा है. बराबर है ना. अभी अमृत कब निकलेगा? अमृत निकलेगा जब जीएसटी में ट्रिब्यूनल्स आने वाले हैं. उसी के बाद आप देखेंगे राइट डिसीजंस आएंगे, जहां पर वो जो जजमेंट आने वाले हैं उसके बेसिस पे हम अपने टैक्स पेयर्स क्लाइंट को सेफगार्ड कर पाएंगे. एंड इसीलिए अभी इस साल इट इज बीइंग सेड दैट 2024 टू 25 में ट्रिब्यूनल्स सेटअप होने वाले हैं. एंड दैट द रीजन ये जो एकदम टाइमली मैं कहता हूँ सेमिनार या सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जो लिटिगेशन के डायरेक्शन में रखा गया है. प्लीज और एक एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज नोट करिएगा,
जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है विच मोस्ट ऑफ अस मिस, बिकॉज वी आर ऑल द टाइम रिप्लाइंग टू द नोटिस इन अ जनरल वे कि 2A to B का आ गया, हमने खुद कितनी नोटिस का रिप्लाई देखा है, जस्ट हाफ पेजर 1 पेजर, जहां पर मैटर्स 2.5 करोड़ 3 करोड़ के थे, और वहां पर रीजन क्या शेयर किया जाता है कि सर हम तो टिपिकली सभी एरियाज और प्रैक्टिस में हम काम करते हैं, सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव जस्टिस टू वन पर्टिकुलर टॉपिक। बट प्लीज नोट करिएगा यहाँ पर कि जैसे ही हम हायर लेवल पे जाते हैं ट्रिब्यूनल्स में, हाई कोर्ट में वगैरह, तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया जाता है या क्वेश्चन किया जाता है ये कंटेंशन या ये आर्ग्यूमेंट आपने ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं लिए करके। Are you getting me? Why these points were not raised before the adjudicating authority? And that's the reason the onus that time आपके ऊपर शिफ्ट होगा, और इसीलिए हम सबको जो राइट अप्रोप्रिएट लीगल आर्गुमेंट है, भले ऑफिसर सुने ना सुने, भले आप सबको लगे वो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वो अगर लीगल आर्गुमेंट है, लीगल कंटेंशंस है, देन वी मस्ट टेक दोज कंटेंशंस एंड आर्गुमेंट एंड वी शुड पुट दैट इन राइटिंग बिफोर द अथॉरिटीज। और उसी के डायरेक्शन में आज का सेशन है। कोई भी इसमें मैं कहता हूँ कि थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली विल बी गोइंग थ्रू द प्रोविजंस बिकॉज अनलेस एंड अंटिल ऑल ऑफ यू गेट अ बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फ्रेम योर आर्गुमेंट ऑल्सो। So I'll be also sharing with you how we are taking up our cases, how we are putting forth our arguments, how we are fighting our cases, कौन से line of argument हम ले रहे हैं अलग अलग cases में। So all those line of argument contention you also can equally take in your own cases. Am I clear? तो yes, चलो शुरू करते हैं। हाँ हाँ राजेश। Subsequently, yes, yes. एकदम बरोबर। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने जो शो कॉज नोटिस जब आप रिप्लाई कर रहे हो, बराबर है, DRC 01A पहले आता है जिसको इंटीमेशन कहा जाता है, फिर DRC 01 आता है जिसको शो कॉज नोटिस कहा जाता है। एंड फॉरगेट अबाउट योर शो कॉज नोटिस, हमने तो जो पहला फर्स्ट अपील वगैरह भी देखे हैं, उसमें भी हमने एक एक पेज के सबमिशन देखे हैं। बिकॉज उसका रीजन क्या है, हर किसी और जो भी प्रोफेशनल है काफ़ी सारे, उनको लगता है कि जो वैट एरा में जिस तरह से अपील फाइल होते थे, बाद में सब्सिक्वेंटली अमेंड किए जाते थे, एडिशनल सबमिशन होते थे, उस टाइप का ही मेथोडोलॉजी GST में एप्लीकेबल है, बट दैट इज नॉट द केस, बराबर है। एंड दैट द रीजन जो आप रिप्लाई भी दे रहे हो, फर्स्ट रिप्लाई टू योर शो कॉज नोटिस, दैट टाइम ऑल्सो जितना स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आप दे सकते हो, जितने कंटेंशंस आप डाल सकते हो, इंक्लूडिंग जुरिडिक्शन के कंटेंशन, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कंडीशन, वो सब हमने लेना चाहिए। दैट इज व्हाट राजेश इज सेइंग, बिकॉज सब्सिक्वेंटली ट्रिब्यूनल लेवल पे जब आप जाओगे तो लॉयर बोलेगा ये आपने तो पॉइंट रखे नहीं, तो लॉयर बोलेगा ठीक है चलो मैं ये आर्गुमेंट ट्रिब्यूनल के सामने पुट करता हूँ। बट अगर अपोजिशन पार्टी यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कंटेंशन लिया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने ये पॉइंट लिए नहीं गए थे, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रेस दोज कंटेंशन और आर्गुमेंट इवन इफ you have a strong case on those contention or argument before the tribunal, and that the reason हमको बहुत ज़्यादा cautious रहना चाहिए regarding this, because most of the time because we don't know the legal provisions appropriately, it is more likely that we might miss those contention and argument. Additionally, सिर्फ और सिर्फ आपको arguments add करने के लिए ही नहीं आपको constitution जानना है, but अगर आप देखोगे आपको even कोई भी judgment भी अगर आज पढ़ना है, कोई भी केस लॉ भी अगर आपको हाई कोर्ट का पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट का पढ़ना है GST के कंटेक्स्ट में, तो इट इज बिकमिंग नाउ मैंडेटरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। बिकॉज आप जनरली देखोगे कोई भी जजमेंट जैसा शीन गोल्डन का आएगा तो वहाँ सेविंग प्रोविजन के बारे में बात किया रहेगा, रिलायंस का जजमेंट आएगा तो उसमें आर्टिकल 14 19(1) का बात किया रहेगा। देन ब्रांड इक्विटी का आपने देखा रहेगा, ट्रांस क्रेडिट का जजमेंट था, उसमें आर्टिकल 300A के बात किया रहेगा, राइट टू प्रॉपर्टी। देन सफारी रिट्रीट जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बराबर है, हो सकता है कि उसका अभी 3-4 दिन में उसका हियरिंग आने वाला है, 18 तारीख या कुछ तो भी उसका डेट लगा है, तो वहां पर आर्टिकल 14 यानी इक्वलिटी का कंटेंशन उन्होंने लिया है, बराबर है। सिमिलरली कलकत्ता क्लब में उन्होंने आर्टिकल 366 29 सब क्लॉज E and F के कंटेंशन लिए थे। यानी कि अगर आप कोई जजमेंट भी पढ़ रहे हो, कलकत्ता क्लब जजमेंट तो आपको सबको पता है, सफारी रिट्रीट आपको सबको पता है, जब आप वो जजमेंट भी रीड कर रहे हो ना,
आपको फ्रिक्वेंटली वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दिखेंगे। अगर आपको उनके बारे में मैक्रो लेवल का अंडरस्टैंडिंग है तो आपको जजमेंट समझने में, वो लॉयर क्या कंटेंशन ले रहा है वो समझने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज नंबर दिखेगा बट वो कैच ही नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यू जस्ट मूव ऑन। बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो हर जजमेंट जो भी आप पढ़ रहे हो, इट विल बिकम मोर एंड मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट जजमेंट इज एक्चुअली सेइंग, व्हाट द जजेस आर सेइंग। And once you know what judges are saying based on what they are saying, then automatically जो आपका client का advice जो आप दे रहे हो, that will become better, because आपको पता है finally judgment कौन से basis पे आ रहा है करके। Getting me? Perfect. So let's get started. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके 3 पार्ट है। एक पास्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पास्ट था, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, मैक्रो लेवल पे उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स है। दूसरा, प्रेजेंटली किस तरह से कौन से क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे सामने है जो हम सबको जानने ही चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर में किस तरह से जीएसटी और कॉन्स्टिट्यूशन का लिंकेज रेगुलरली केस लॉज में आपको दिखने मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? काफी सारे कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है, बेसिक लॉ भी कहा जाता है जर्मनी में, बिकॉज इट इज अ लॉ बेस्ड ऑन विच ऑल अदर लॉज आर मेड। Are you getting me? It's a law based on which all other laws are made. It's a law for the governance of the country. बराबर है। सो ये अपना मदर लॉ या फादर लॉ, नॉट मदर इन लॉ। ये मदर लॉ या फादर लॉ है, यानी कि इट इज लॉ ऑफ लॉ, यानी सिंपली स्पीकिंग गंगोत्री, बराबर है, जहां से सभी लॉ ओरिजिनेट होते हैं। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को हर कंट्री में बहुत प्रोमिनेंस या रिस्पेक्ट या इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको क्या, अच्छा हर कंट्री में होता है, तो इसका मतलब ये है कि हर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है? आंसर इज नो। देयर आर सर्टेन कंट्री जो हम आगे देखने वाले हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे? यानी कि जब से हम आदि मानव से लेकर ऐसा अपना ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तब से कॉन्स्टिट्यूशन था क्या? आंसर इज अगेन नो। 1218 के आसपास, 1215 के आसपास, लगभग अभी 800 साल के ज्यादा ऊपर हो चुके हैं, एक मैग्ना कार्टा लिबर्टीज के रिगार्डिंग, मैग्ना कार्टा लिबर्टियम करके एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था। उस टाइम के जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड थे उन्होंने एंड वहां के रेसिडेंट्स ने उनके बीच में, और ये बेसिकली समझौता था। और उसमें क्या था कि भैया इवन द किंग विल बी सब्जेक्टेड टू द लॉ, बिकॉज अर्लियर टाइम में क्या आता था, किंग ने जो भी करेगा उसको कोई इम्पैक्ट नहीं, और उसको जो भी करना है वो कर सकता था, किसी को उठाना भी है, मारना भी है वगैरह। तो दे मेड अ ट्रीटी एंड दैट्स हाउ देन स्लोली ये जो मैग्ना कार्टा है, इसको आपने बार बार सुना रहेगा। ये स्लोली एज वी बिकेम मोर सिविलाइज्ड, इट वाज कन्वर्टेड इनटू रूल ऑफ लॉ, और उसी में से फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने जन्म लिया काफी सारे कंट्रीज में। बट प्लीज नोट करिएगा, जैसे मैंने कहा कि नॉट एवरी कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसका सबसे जबरदस्त कर्मा बनतो ना अपन, कर्मा, उसका सबसे जबरदस्त एग्जांपल है, आपको बिलीव नहीं होगा, कौन से कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। गेस द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपने ऊपर रूल किया। हमारे ऊपर किसने रूल किया? यूके ने। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? आंसर इज नो। UK does not have a constitution, and right now they are saying, right now as we speak today, they are saying that they should have a constitution. And you can understand the importance of constitution. Then obviously there are other countries as well, Canada है, New Zealand है, Israel है. There are few countries जहाँ पर constitution है and constitution उनके resident को rights देता है, जैसे चाइना। बट वहाँ पर कितना practically उसको implement किया गया है आप सबको पता है। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। 1, वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेल एज वेल। सिर्फ थ्योरी या फिलोसफी होने से काम नहीं होता है, प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया इज द जीता जागता लाइफ एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट थिंग वी सेड दैट यूके डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इट मीन्स? दैट मीन्स प्रैक्टिकली देयर इज नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल in UK. Whatever you do, that can become the law. तो कल पार्लियामेंट ने यूके में कुछ भी लॉ पास कर दिया तो that can sustain.
बिकॉज पार्लियामेंट इज वहां पर सुप्रीम, विच कांट हैपन इन आवर कंट्री. बट प्लीज नोट करिए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं यूके में, इसका मतलब वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं, ऐसा नहीं है. देर आर मेनी जजमेंट्स इन दैट कंट्री जहां पर जो जजमेंट के थ्रू बेसिक जो राइट्स है उसके सिटीजन्स के, उसको प्रिजर्व किया गया है. बराबर है. सो दैट वे इट इज देयर. बट थोड़ा उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है, जब भी किसी भी पर्सन को फाइट करना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको मल्टीपल जजमेंट्स वगैरह के थ्रू जाना पड़ता है. बट वेयर एज फॉर अस इट इज वेरी इजी दैट वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ो उसमें से जो क्रिटिकल पॉइंट लो एंड गवर्नमेंट के आगे अपने को रीड भी फाइल करना है तो वी कैन डू दैट. मैं क्लियर? परफेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था आप सबको पता है कि जब जीएसटी लॉ बन रहा था, हाउ मेनी स्टेट्स केम टुगेदर? अभी कितने स्टेट्स है इंडिया में? 29 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. बराबर है. तो ऑल ऑफ अस केम टुगेदर एंड हमने बोला कि भैया जीएसटी बनाते हैं. करेक्ट. जब जीएसटी बना उस टाइम पे इट वाज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. उसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना उस टाइम पे 29 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी नहीं थे. कितने थे? लगभग 600 राज्य रजवाड़े थे. वहां के जो बिकॉज उस टाइम पे इलेक्शन तो नहीं होते थे, तो उन्हीं में से जो लीडर्स थे, जो बड़े लोग थे, बराबर है, जो नॉलेज एक्सपर्ट्स थे, जो लीगल एक्सपर्ट थे, उनको चुनिंदा लोगों को चुना गया और उनको नॉमिनेटेड मेंबर्स बोला जाता है. बराबर है. वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को एक साथ में लाया गया. लगभग 290 प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स थे और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है. आपने ये वर्ड भी सुना रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम चालू किया था 1946 में. फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. कब बना? फाइनल कब हुआ? 1950s में, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे हम उसी दिन की वजह से मनाते हैं. एक्चुअली थोड़ा 2 महीना पहले 26 नवंबर 1949 को पहला कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन इंप्लीमेंट किया गया था. इसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोल के मनाते हैं. तो 26 नवंबर एंड टिपिकली सब पूरी दुनिया को जो पता है वो 26 जनवरी, दैट इज द रिपब्लिक डे 1950s. तो आप देखेंगे कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने को, 1946 से 1950, 3-3.5 साल. तो हमको लगेगा बहुत टाइम लगा करके. बराबर है. जल्दी बनना चाहिए था. लेकिन नोट करिएगा यहाँ पर लगभग 300 मेंबर्स जिन्होंने न्यूमरस मीटिंग्स अटेंड की. उस टाइम पे ना कोई रोड कनेक्शन है, ना कोई ट्रेन है, ना फ्लाइट है. वो सब लोग इंडिविजुअली जा रहे हैं, एक साथ बैठ रहे 300 लोग. माइक सिस्टम वगैरह कुछ ज्यादा है नहीं वहां पर. एक साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे डिबेट कर रहे, डिस्कस कर रहे, फिर फाइनलाइज कर रहे. और ये जो भी डिबेट डिस्कशन हुए ना, उसके पूरे मिनट्स भी आपको मिलेंगे आज भी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट्स हुए थे. हर आर्टिकल के ऊपर, हर वर्ड के ऊपर डिबेट्स हुए, लेंदी डिबेट्स, नंबर ऑफ डेज के डिबेट्स हुए. एंड दैट द रीजन कितना टाइम लगा. बट फिर भी उसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे जो 3 साल लगे हमको, डू यू नो कि पाकिस्तान को कितना टाइम लगा? उनसे तो हमने कंपेयर भी नहीं करना चाहिए पर कितना टाइम लगा? 27 लॉन्ग ईयर्स. एंड दैट इज द वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन पाकिस्तान आज वो स्टेट में है जो वो स्टेट में है. जो कोर रीजन बोलते हैं, जिस चीज को 3 साल लगने चाहिए उस चीज को उनको 30 साल लगे. और वो भी जब कंट्री कोई बर्थ लेता है उस टाइम पे राइट अगर सिस्टम सेट हो जाए तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. और अगर राइट सिस्टम ही बराबर ने प्लेस हुए तो यू नो द चैलेंजेस एंड दैट इज व्हाट दे आर फेसिंग एंड दैट इज वेयर वी गेट आवर स्ट्रेंथ. तब आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस कितना है. जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करना था. वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन वाज कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हैं हमको. शुड देयर बी वन फॉर सेंटर एंड वन फॉर स्टेट. तो क्या बनाया हमने? थ्रू आउट कंट्री के लिए एक बनाया क्या? आप भूल गए एक्चुअली. आंसर इज नो. 5 साल हो चुके हैं. 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हमने इंफ्रक्शियस कर दिया था. बराबर है. यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे इंडिया में. कैन यू बीट दैट? एक बार J&K का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 2 पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन थे जिसको 5 अगस्त 2019 को एक बनाया गया.
गेटिंग मी? तो कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज के ऊपर उन्होंने काम किया उस टाइम पे। प्लस काफी सारे कंट्रीज में ड्यूअल सिटीजनशिप दिया जाता है, सेंटर का और स्टेट का, यूएस में जैसा दिया जाता है। इंडिया में भी ये डिस्कस हुआ था, बट फाइनली उन्होंने बोला यू आर सिटीजन ऑफ द कंट्री, नॉट सिटीजन ऑफ द स्टेट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कहाँ से, कौन सा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन या कौन सा बेसिक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बना? तो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करके एक एक्ट था, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम प्रोविजंस हमने लिए हैं, इंक्लूडिंग इमरजेंसी के प्रोविजंस, जो अपना अलग अलग जो भी बेसिक स्ट्रक्चरल जो प्रोविजंस है ना, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस वगैरह, रिट वगैरह, वो ऑलमोस्ट हमने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां से लिया गया है, बराबर है। और एट द सेम टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड से जितने भी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट प्रोविजन थे वो हमने लिए, एंड देन हमने हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, यूके ने हमको ऑफर किया था, जिनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आज तक नहीं बना है, उन्होंने हमको ऑफर किया था आपके पास लीगल एक्सपर्ट्स नहीं है, यू कैन नॉट मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी विल मेक इट एंड गिव इट टू यू। कैन यू बीट दैट? और हमने क्या कहा? नहीं, वी विल मेक इट एंड वी मेड इट आल्सो। हमने यूएसए से जो प्रियम्बल है, आपने वो वर्ड सुने रहेंगे ना, वी द पीपल, वी द पीपल जो पहले वाले वर्ड है प्रियम्बल में, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली चालू होता है, वो हमने लिया है प्रियम्बल यूएसए से। यूके से पार्लियामेंट एंड जो प्रोसेस ऑफ रिट है वहां से लिया है। आयरलैंड से बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट हमने उठाया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। आप जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो डिबेट डिस्कशन चल रहा है, ऑल ऑफ यू नो, तो उसके बारे में कहां पर लिखा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी उसको कहा जाता है। उसमें यानी कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों बोला है उन्होंने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डायरेक्शन देने के लिए है, ये इंप्लीमेंट मत करो आप अभी, बिकॉज 1950 में जब कंट्री बन रहा है, एकदम हम एकदम बेसिक स्टेज पे, उस टाइम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोच सकते थे क्या? नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि हम डायरेक्शन दे रहे हैं, जब भी एक राइट टाइम आएगा, एक राइट गवर्नमेंट आएगी, हम एक राइट स्टेट ऑफ इकोनॉमी में रहेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग सबके पास आएगा, उस टाइम पे अगर उस टाइम के गवर्नमेंट को लगा, देन दे कैन इम्प्लीमेंट इट। तो ये डायरेक्शन है, ये फंडामेंटल गारंटी नहीं कि इम्प्लीमेंट ही करना है करके, बट डायरेक्शन दिया है। यानी कि आप सोच सकते हो कितने फोर साइटेड थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उन्होंने उस टाइम की चीजों का एड्रेस नहीं किया, बट इवन दे वर एबल टू फोरसी कि फ्यूचर में कौन सी और बेटर चीजें की जा सकती है। इवन जो इक्वालिटी ऑफ वेज है, मेल फीमेल के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं ना, कि मेल फीमेल को सेम अमाउंट ऑफ वेज मिलना चाहिए, वो सबके बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया है। तो कितना फोरसाइटेडनेस था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, यू कैन अंडरस्टैंड। कनाडा में सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है, बराबर है, वो यहाँ पर भी इंडिया में भी वो फीचर हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है। पहला लिस्ट कौन सा है? यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट है, जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकता है, बराबर है, जैसा पुलिस आता है, हॉस्पिटल आता है, तो वो कंकरेंट लिस्ट में रहता है। कंकरेंट लिस्ट में कभी भी कोई टैक्सेशन का कोई एंट्री नहीं था। कंकरेंट में यानी सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकता है। तो जब जीएसटी पहली बार इंट्रोडक्शन का बात हो रहा था, तब डिस्कशन हुआ कि जीएसटी को कंकरेंट लिस्ट में डाला जाए क्या, बिकॉज यूनियन लिस्ट में डाला तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में डाला तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट में डाला तो दोनों बना सकते हैं। लेकिन जितने भी टैक्सेशन की एंट्री है, वैट थी, एक्साइज थी, सर्विस टैक्स थे, बराबर है ना, जो 97 जनरल रेसिड्यूअरी एंट्री, वो सब या तो यूनियन लिस्ट में थी या तो स्टेट में थी। तो कंकरेंट लिस्ट में कोई भी टैक्सेशन का एंट्री नहीं था। इसके लिए उनको लगा कि यार ये थोड़ा इनकरेक्ट हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने कंकरेंट लिस्ट में एंट्री जीएसटी की डाली नहीं। तो कहाँ पर डाली उन्होंने? सेपरेट एक आर्टिकल बनाया जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A जो रशिया से हमने लिया, एंड प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया,
कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने इंट्रोड्यूस किया? 101। तो उसको आर्टिकल 368 के रिगर्स के थ्रू जाना पड़ा। आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर है। और उस आर्टिकल के ऊपर बहुत बड़ा एक अपना हिस्टोरिकल जजमेंट है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, एनी गेसेस कौन सा जजमेंट है वो? केशव नंदा भारती, जिसको इंडिया के अपने टॉप मोस्ट लॉयर, टॉप मोस्ट यानी उसके आगे और कभी पीछे कभी कोई लॉयर उतना बड़ा हो ही नहीं सकता, नानी पालकीवाला जी एडवोकेट, बराबर है, उन्होंने फाइट किया था। नानी पालकीवाला जी कौन है? हरीश सावड़े जी के सीनियर मेंटर गुरु आप बोल सकते हैं ना, सोली सर जी, कितने सारे उनके जूनियर से जो आप सब उनके नाम जानते रहेंगे आज। तो पहले तो सिस्टम क्या बना है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये तो प्रोविजन तो हमने ले लिया अलग अलग कंट्री से और हमने साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, बट व्हाट शुड बी द सिस्टम? शुड वी बी द यूनिटरी कंट्री? यूनिटरी यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगभग लॉ बनाएगा जैसा जापान में होता है, बराबर है। शुड वी बी फेडरल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा लॉ बनाएंगे जैसा यूरोपियन यूनियन में होता है। तो टिपिकली स्मॉलर कंट्री रहा जैसा जापान, तो टिपिकली इट इज प्रेफर्ड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डोमिनेट। इवन चाइना बड़ा कंट्री है बट वहां पर आपको पता है कौन सा मेथोडोलॉजी यूज होता है, तो दे गो फॉर सेंट्रल लॉज। ईयू में यू हैव अ फेडरल सिस्टम, co-federal system, sorry, and then we said that instead of having a unitary system, instead of having federal or co-federal system, we will have a quasi-federal system. Quasi-federal यानी क्या कि दोनों जगह पावर रहेगा, सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, और उसके सब्जेक्ट मैटर जैसे हमने बोला ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वहां पर हम डाल देंगे। प्लस गवर्नमेंट ने कहा कि भले हमारा फेडरल यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, क्वासी फेडरल रहेगा, बट एट द सेम टाइम द टिल्ट विल बी टुवर्ड्स सेंटर। यानी कि अगर कोई फाइट होता है सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ में, तो फाइनल कौन सा लॉ रहेगा? सेंटर का। उसको लॉ ऑफ रिपग्नेंसी कहा जाता है, जो आर्टिकल 254 में है। तो जब जीएसटी आया तो यहाँ पर ये डिबेट या डिस्कशन हुआ कि भैया सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों आप ला रहे हो और दोनों में कोई कॉन्ट्ररी प्रोविजन रहा तो कौन बड़ा रहेगा फिर? सीजीएसटी? आंसर इज नो, आंसर इज नो, बिकॉज ये साइमल्टेनियस पावर है, ये साइमल्टेनियस पावर है। और इसीलिए आप आर्टिकल 246 से जो हम आगे पढ़ने वाले ना, उसमें लिखा गया है स्पेसिफिकली कि यहाँ रिपग्नेंसी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं तो सेंटर और स्टेट का फाइट तो चलता रहेगा, वेस्ट बंगाल में तो चलता ही है ना, दिल्ली में तो चलता ही है ना, तो और ज्यादा एग्रेसिवली चलेगा जीएसटी में भी। तो उसको अवॉइड करने के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने डाला यहाँ लॉ ऑफ रिपग्नेंसी एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं क्लियर? अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, देन ऑब्वियसली वंस वी गेट इनटू द प्रोविजन ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि 1950 में 2 साल 11 महीना 17 दिन के बाद हमने बनाया। द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडिया इन द वर्ल्ड। उसको यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर नहीं किया है अब तक। अपने को आता है ना कि बेस्ट क्या कहते बेस्ट कंट्री करके यूनाइटेड नेशन ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते ना, तो वैसे ने एक्चुअली इन रियलिटी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है। यूएस का भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो 4-5 हजार वर्ड्स का है, अपना कितना है? 1.5 लाख वर्ड्स का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 230 साल हो चुके हैं, 237, और उसमें लगभग 27 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम हुआ? 1950 से लेकर अब तक 74 ईयर्स, अभी 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमने कितने बार अमेंड किया है? 105 बार अब तक, बराबर। यानी कि हमारा अमेंडमेंट में ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा है करके। बट अमेंडमेंट इज अ प्रॉब्लम। कॉन्स्टिट्यूशन को इतने बार अमेंड कर रहे थे, प्रॉब्लम है कि बिकॉज यूएस ने 230 साल में 27 टाइम्स किया है, यानी कि हर 10 साल में उन्होंने एक बार किया है। और हमारा रेशियो क्या है? 10 साल में 15 बार, बराबर है ना? तो वी आर 10 times more amending the constitution as compared to other country. So does that mean क्या ये गलत है करके, ये रॉन्ग है करके? तो यहाँ पर हमको ये देखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट।
It is not a dead, it is not a philosophical, it is not a document for the past. It is document for the past, present and future. और अगर लिविंग डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली उसमें अमेंडमेंट चेंजेस होने भी चाहिए और इसीलिए वो होते भी रहे हैं. तो रादर जो अमेंडमेंट चेंजेस है वो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाइव है उसका एक इंडिकेशन है रादर देन अदरवाइज. मैं क्लियर? चलो, जैसे मैंने कहा कि यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां का वो सुप्रीम है, उसको पार्लियामेंट ओवर रूल नहीं कर सकता. तो इंडिया में क्या सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बराबर है. इट इज नॉट पार्लियामेंट, इट इज नॉट जुडिशियरी. स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज सुप्रीम. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो पहले दो चीजें आप जो मैक्रो लेवल पे याद रखिएगा. कोई भी लॉ, सेक्शन, प्रोविजन, रूल जब हम देखते हैं तो पहली बात कि जो भी प्रोविजन आप देख रहे हो उसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहा है क्या नहीं. अगर आप देख रहे हो कि कोई लेवी, कोई टैक्स लगाया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है या लेवी किया जा रहा है, उसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या नहीं. अगर सोर्स नहीं है देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. बराबर है. एट द सेम टाइम भले सोर्स है लेकिन अगर फंडामेंटल राइट या एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन वायलेट हो जाते हैं तो देन आल्सो यू कैन से दैट दिस प्रोविजन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. है ना क्लियर? तो ये दो पर्सपेक्टिव से हमको देखना है और इसीलिए हमको समझना पड़ेगा सोर्स क्या है और कौन कौन से प्रोविजन है जो वायलेट हो ही जा सकते हैं प्रैक्टिकली. कॉन्स्टिट्यूशन में 450 आर्टिकल्स है. हाउ मेनी आर्टिकल्स? 450. तो हमको 450 आर्टिकल्स पढ़ने हैं क्या आज? आंसर इज नो. वी जस्ट नीड टू रिमेंबर 5 क्रिटिकल आर्टिकल्स. हाउ मेनी? 5. सो यू कैन राइट इट डाउन. आर्टिकल 265, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 279A एंड आर्टिकल 366. ये 5 ही आर्टिकल है. 265, 246A, 269A, 279A एंड आर्टिकल 366. ये सिर्फ 5 आर्टिकल है जो आपको याद रखने हैं. ओवरव्यू में मैं क्विकली आपको रन थ्रू करा देता हूँ. आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. ये आपने पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा. उसके ऊपर बहुत सारा डिबेट डिस्कशन भी हुआ था जब अपने अपोजिशन पार्टी के पर मुझे लगता है जो लीडर्स है वो दूसरे कंट्री में गए थे यूनियन ऑफ स्टेट है क्या नहीं है करके. बराबर है. तो वो आता है आर्टिकल 1 से, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. देन आता है ऑब्वियसली आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है आपको. आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जिसमें इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है जीएसटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में. बराबर है. तो ये तीनों की गारंटी आपको मिलती है. फंडामेंटल राइट्स है आपके. पर फंडामेंटल राइट्स को अगर कहीं पर भी वायलेशन होता है देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. अगर किसी को डायरेक्टली उठाया जाता है. बराबर है. अगर किसी का राइट टू डू बिजनेस कॉम्प्रोमाइज होता है, अगर इक्वालिटी के बेसिस पे किसी का कोई फंडामेंटल राइट का हनन होता है देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. देन यू हैव ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए कुछ कपल ऑफ प्रोविजन जैसे आर्टिकल 36 to 51 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह था. आई एम जस्ट कीपिंग दैट. देन यू आल्सो हैव आर्टिकल 141. आर्टिकल 141 क्या है? एनी गेसेस? जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहते हैं वो बाइंडिंग है. वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 से. बराबर है. सो दैट इज व्हाट आर्टिकल 141 से, दैट बाइंडिंग नेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. तो जब बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग है हर लोअर कोर्ट पे तो वो आता है आर्टिकल 141 से. जो रिट पिटीशन जो मुझे लगता है कल अविनाश सर ने लेक्चर लिया आपका, रिट पिटीशन वो आता है आर्टिकल 226 से. बराबर. यू कैन एज आई मेंशन यू कैन आल्सो फाइल रिट अंडर आर्टिकल 32 एज वेल अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में. 243G एंड 243W में यह एंट्रीज हो सकता है. अगर आप जीएसटी में काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने पढ़े रहेगी या देखे रहेगी. ये बेसिकली पंचायत एंड लोकल अथॉरिटी ने क्या काम करना चाहिए उसके कंटेक्स्ट में आर्टिकल 243W एंड 243G है.
और ये आपको जीएसटी में जब आप कोई एग्जाम्पशन रिलेटेड कोई एंट्री अगर आप देख रहे हो कि लोकल अथॉरिटी के कौन कौन से कामों का एग्जाम्पशन मिलता है, फॉर एग्जांपल जब आप लोकल अथॉरिटी को कोई पेमेंट कर रहे हो, बराबर, ऑफिशियल पेमेंट, तो जब आप ऑफिशियल पेमेंट कर रहे हो वो अगर आप कर रहे हो बिल्डिंग प्लान सैंक्शन के लिए, तो वहां पर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है क्या? ये क्वेश्चन आएगा, बराबर है। तो वहां पर वो अगर सर्विस हुआ तो टैक्स पेबल है ना। गवर्नमेंट सर्विसेज, ये गवर्नमेंट सर्विस है या सॉवरेन फंक्शन है? सॉवरेन फंक्शन यानी समथिंग विच द गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू डू, बराबर है। तो आइडियल देन इट इज नॉट अ सर्विस। एंड प्लस एग्जाम्पशन की जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे 12/2017, उसमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोला है सर्विसेज बाय स्टेट, सेंटर एंड लोकल अथॉरिटीज, इफ इट इज इन रिलेशन टू आर्टिकल 243D एंड 243W एंड G, तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है मैं क्लियर? उसी के रिगार्डिंग और आपको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज के सामने पुट करने के लिए, तो देयर इज ए FAQ आल्सो व्हिच इज अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज, जो CBIC ने खुद इशू किया है, जहाँ पर ये जो भी हम बिल्डिंग सैंक्शन वगैरह के जो चार्जेस पे करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज रिसेंटली वी हैव सीन दैट सर्टेन डेवलपर्स, रियल एस्टेट प्लेयर्स हैव गॉट अ लेटर asking for details of such payment, या इंक्वायरी वगैरह जब इन्वेस्टिगेशन होता है, they typically ask for such details and then they say रिवर्स चार्ज आपको पे करना है। तो वहाँ पर certainly आर्टिकल 243D, 243W and G read with that FAQ और circular would be of great help, बराबर। चलो, then जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 246A, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 265, जो हम डिस्कस करने वाले हैं 269A, then 366, ये क्रिटिकल है 279A। ये 4-5 आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, 100%। जो भी PPT आज तक डिस्कस किया है वो शेयर हुआ ही है, जो डिस्कस नहीं किया वो भी शेयर कर दिया है, तो सर्टन। बट इसका मतलब ये नहीं कि PPT शेयर होने वाला है तो आप बोलोगे चलो व्हाट्सएप पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज में भेज देता हूँ। या नहीं, यू शुड पैरेलली, we can listen to you and 100%। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपको, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप लिखो करके, बिकॉज व्हेन यू राइट इट डाउन ना तो मेमोरी में वो छप जाएगा, बराबर है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली यंग मेंबर्स। आप तो सीनियर, आपको तो पता ही है करके, बट यंग मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करके, आपको इसीलिए कर दिया मैंने। बिकॉज अभी आजकल तो ऐसा है कि जैसा प्रणव इतना जूनियर दिखते हैं CSV, कि अपने को सीनियर बोलना ही पड़ता है कि हम सीनियर है करके अभी। और बाकी के जो आए हैं वो सुपर सीनियर है, ऐसा है। Yes, so let's get started. The first and most important article in the Constitution is Article 265. ये जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मैं बोलता हूँ कि ये ब्रिलियंट पीस ऑफ ड्राफ्टिंग है, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ ड्राफ्टिंग, आर्टिकल 265। इसमें कितने वर्ड्स है पता है? सिर्फ 12 वर्ड्स, 12 वर्ड्स। और ये 12 वर्ड्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई है। और क्या गारंटी दी गई है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अभी इसी स्टेटमेंट को आप अलग तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन कितना स्मार्टली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखा है मैं आपको बताता हूँ। आप इसको सिंपली लिख सकते थे, टैक्स शैल बी कलेक्टेड विद अथॉरिटी ऑफ लॉ। सिंपल, एकदम बराबर है। टैक्स में बी कलेक्टेड विद अथॉरिटी ऑफ लॉ, बराबर है। ये भी लिख सकते, पॉजिटिवली लिख सकते थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको लिखा नो टैक्स, पहली बार, यानी कि कंप्लीट निगेशन। एंड उसके बाद उन्होंने मैंडेटरी वर्ड यूज किए हैं, शैल बी, यानी कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर में ये बोला जाता है कि जब निगेशन के बाद मैंडेटरी वर्ड्स का यूज होता है तो वो जो स्टेटमेंट का फोर्स है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो नो टैक्स शैल बी लेविड, तो सिर्फ लेवी नहीं और कलेक्टेड। और मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताऊंगा थोड़ी देर में।
no tax shall be levied or collected except only one exception. And what is that exception? Authority of law. बराबर है? If there is a authority of law, then only you can collect the tax. If there is no authority of law, can you collect the tax? Answer is no. If there is no authority of law, can you levy the tax? Answer is no. यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है नो टैक्स. टैक्स में उन्होंने डिफरेंशिएशन किया है क्या? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. बिकॉज कुछ कुछ कंट्री में, कनाडा वगैरह में डिफरेंशिएशन किया गया है. इंडिया में है क्या? नहीं. इसका मतलब टैक्स वर्ड में सभी टैक्स आ जाएंगे. आपका डायरेक्ट भी आ जाएगा, आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी आ जाएगा. बराबर है. अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने फेस भी किया रहेगा. अगर आप लोकल अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हो, पीएमसी, बीएमसी, पीसीएमसी, अगर आप उनको प्योर सर्विसेज दे रहे हो, आपने उनके ऊपर 1 करोड़ का इनवॉइस रेज किया, प्योर सर्विसेज 1 करोड़ का इनवॉइस रेज किया, आपको पता है कि कोई सर्विस कोई जीएसटी लगेगा नहीं, लगेगा क्या उसके ऊपर जीएसटी? आंसर इज नो. प्योर सर्विसेज को एग्जम्पशन दिया गया है, वो आर्टिकल 243 WRG के तहत है. अपन अज्यूम करते हैं एग्जम्पशन अवेलेबल है, ऐसा अज्यूमशन लेते हैं. चलो, तो इट इज एग्जम्प्टेड. You will not charge GST on that 1 crore rupees. You will raise invoice of 1 crore rupees. Now, PCMC, PMC, BMC जब आपको पेमेंट करते हैं, what they do? Do they deduct GST, TDS? Yes. Are they deducting? Answer is yes. But should they? Can they? GST का TDS को डिडक्ट कर सकते हैं क्या? अगर आपका सर्विस एग्जम्प्टेड है तो. अगर आप आर्टिकल 265 पढ़ोगे ध्यान से तो आपका आंसर आएगा नो. नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड. कलेक्शन अलाउड है क्या? अनलेस एंड अनटिल देयर इज अथॉरिटी. अगर आपने कोई सर्विस को एग्जम्प्ट करके बोल दिया है, यू ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज एग्जम्प्टेड सर्विस, तो टैक्स कलेक्शन लेवी नहीं हो सकता. तो टैक्स लेवी नहीं हो सकता तो टीडीएस के थ्रू उसको कलेक्ट किया जा सकता है. But can we say like this? When we collect a tax, the हाँ. tax gets into the government account. आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ. कैश लेजर में जा रहा है. हाँ, but मेरा तो कैश तो it is like with me. बराबर है. अभी आपके पास जैसा आपका बैंक अकाउंट है सर, अगर आपको टिकट बुक करना है अभी, तो आप आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन करके इमीडिएटली टिकट बुक कर पाएंगे. कैश लेजर में आपको यूटिलाइज करना है पेमेंट कोई पर्सनल पर्पज के लिए, कैन यू डू दैट? आपको उसको पहले आपके बैंक अकाउंट में लाना पड़ेगा. यानी कि इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटीज. आपको बैंक डायरेक्टली पैसे विड्रॉ करने नहीं देगा. कैश लेजर में जो पैसा पड़ेगा आपको गवर्नमेंट के पास जाना ही पड़ेगा. बराबर है ना? तो व्हाइल वी कैन से इट इज अ कैश लेजर, तो अपना ही लेजर है करके, टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू. बट वो कंप्लीटली फ्रीडम जो रहता है, जैसा बैंक का मेरा फ्रीडम है, वैसा वो फ्रीडम है क्या? आंसर इज नो. मुझे रिफंड भी लेना है उसका, तो मुझे टैक्स अथॉरिटी के पास जाना ही पड़ेगा. तो इट इज एक्चुअली लाइंग विद गवर्नमेंट ओनली. जैसा पीएलए करके कंसेप्ट था पहले एक्साइज में, तो इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. गेटिंग मी? तो इसकी वजह से इन आर व्यू दैट कैन नॉट बी इवन डिडक्टेड. एंड मैं तो लीगल प्रिंसिपल की अभी हम बात कर रहे हैं. लीगली कैन दे डिडक्ट, कैन दे कलेक्ट, जब कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज को अलाउड ही नहीं किया गया है. एंड दैट इज वेयर एक दो टैक्स पेयर थे हमारे क्लाइंट. ऑब्वियसली मैक्सिमम क्लाइंट में क्या आ जाता है, ऑलमोस्ट 100 अगर आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है जो गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं, तो किसी को भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट पंगा लेना नहीं होता है. बिकॉज उनको तो डे टू डे काम करना है, पेमेंट करना, कलेक्ट करना पड़ता है उनको. दैट इज वाई. एक दो जगह जहाँ पर चैलेंज आ रहा था, कैश लेजर में बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो रहा था, तो हमने स्पेसिफिक लेटर दे दिया. बराबर है? और उसके बेसिस पे वो टैक्स पेयर का जो डिडक्शन था वो रुक गया. ऑब्वियसली उसमें 2-4 मीटिंग करना, एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना, वी हैड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. बट जब 100 ऑफ करोड़ का अगर मैटर है टू एंड रेगुलर अगर ट्रांजेक्शन है तो इट डज मैटर. बराबर है?
सो टू दैट एक्सटेंट आप सर्टनली ये देखिएगा जहाँ पर आपको लग रहा है कि भैया पर्टिकुलरली एडिशनली अगर आपका टैक्स पेयर अनरजिस्टर्ड है वहाँ पर भी वो डिडक्ट करते हैं तो रिफंड तो मिलने से रहा, बराबर है। तो रजिस्ट्रेशन लेना दूसरा सरदर्द हो जाता है, तो वहाँ पर सर्टनली ये लेटर वगैरह पुट करिएगा। एक जगह तो हमको बोला गया है कि आप एडवांस रूलिंग लेके आओ तो हम उसका डिडक्ट नहीं करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली इट इज बिट डिफिकल्ट बट यू हैव टू पुट अक्रॉस अप्रोप्रिएटली विथ फाइन legal drafting, so then it can help your cause, and a couple of interaction is always required because they also don't know, because अकाउंट ऑफिसर का क्या होता है उसको तो 100, 200, 500, 1000 पेमेंट रहते हैं डेली। फॉर हिम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू bifurcate all these things, but if you persist, if you insist, if you put that in writing, slowly they will be able to understand. ठीक है? हाँ सर। When TDS TCS provision was introduced and later on hold for some months, so when first time it was introduced, when FAQ was released, in which it is also been explained that on exam supply, एकदम बराबर है। FAQ में भी स्पेसिफिकली लिखा गया है ये, एग्री, FAQ में भी लिखा गया है स्पेसिफिकली। मैं इसलिए तो अभी तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें, इसके लिए मैं उसी को होल्ड करके रख रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। बट देयर इज FAQ ऑल्सो TDS TCS का, जो मुझे एग्जैक्टली याद है वो GST ने किसी निकाला तो उन्होंने स्पेसिफिकली सब पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो आप वो भी पुट अक्रॉस कर सकते हो लेटर में। ठीक है? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग या इशू आपने देखा रहेगा, जो माइनिंग राइट्स है उसके ऊपर अभी डिबेट हो रहा है। माइनिंग राइट्स, जब आपको राइट टू माइन मिलता है कोल वगैरह का, व्हाट आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग अ सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट और यू आर गेटिंग राइट टू कलेक्ट टोल फ्रॉम दैट, कलेक्ट कोल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर माइन? बिकॉज आपने बोला कि माइनिंग राइट के बाद मुझे कोल मिल रहा है, तो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? सेम रेट एज एप्लीकेबल टू कोल। अगर आपने उसको सर्विस बोला तो 18%, बराबर है। तब लॉ क्या बोलता है? आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अभी अथॉरिटी ऑफ लॉ कहाँ तक है? सेम रेट एज एप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ गुड्स। बट आप बोलोगे यार वो गुड्स है क्या सर्विस है, ये कैसे समझेगा? तो उसके लिए हमको एकदम लॉजिकली अगर आप देखेंगे, मैं अगर माइनर हूँ, मुझे अगर कोल चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास पहले क्या होता था? पहले गवर्नमेंट खुद कोल माइन में माइनिंग करता था, कोल निकालता था एंड वो कोल बेचता था। तो अगर मुझे कोल चाहिए तो मैं कोल खरीदता था। सो आई वाज गेटिंग कोल। सो अंडरलाइन ट्रांजैक्शन क्या था? सप्लाई ऑफ कोल। बाद में गवर्नमेंट को लगा यार कोल इतना लोग लगाएगा, मशीनरी लगाएगा, कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं कितना उसमें कोल मिलेगा नहीं मिलेगा, डे टू डे ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग है करके, बराबर है। सो व्हाट दे सेड, वी विल गिव यू राइट टू माइन द कोल। सो गिविंग द राइट टू माइन द कोल, इज इट अ सर्विस? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एम आई डूइंग? पहले मुझे गवर्नमेंट कोल निकाल के देता था, अभी मैं जाके कोल निकाल के ले रहा हूँ। दोनों ट्रांजैक्शन में पहले भी कोल मिलता था, अभी भी कोल मिल रहा है। तो पहले अगर 5% लगता था तो अभी भी 5% लगना चाहिए, बराबर है ना? बट सर्कुलर में क्या बोला गया है? गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, सर्कुलर नंबर 164, ड्यूरिंग द पीरियड 2017 to 2018 इट वाज टैक्सेबल एट 18%। तो यहाँ पर जब आपको पता है रेट का जो नोटिफिकेशन है वो अगर 5% बोल रहा है, एक्चुअली आपको पता है यू आर गेटिंग अंडरलाइन ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है, देन द रेट ऑफ टैक्स applicable for your transaction should be as applicable to goods and not as applicable to services। अभी ये जो मैं क्लैरिफिकेशन या डिस्कशन जो कर रहा हूँ आपको कहाँ यूज करना है? आपको ये नहीं करना है कि सर ने कल बोला था कि उसमें 18 नहीं 5% लगता है, सो फ्रॉम टुमारो दैट इज 2024 आप जो भी पेमेंट कर रहे हो माइन का या रॉयल्टी का वगैरह, वहाँ पर आप 5% पे करो। वैसा मैं कोई एडवाइस कर रहा हूँ क्या आपको? आंसर इज नो। अगर ओल्ड वाले पीरियड में आपने 5% पे किया है, डिपार्टमेंट ने एलिगेशन किया है कि वो 18% होना चाहिए, डिफरेंशियल ड्यूटी कितना है? 13%। उसका अगर डिमांड आया तो आपने ये आर्गुमेंट लेना चाहिए।
आर गेटिंग मी? और अगर आपका रेगुलर पेमेंट चल रहा है, एवरी मंथ यू आर पेइंग, एंड अगर आपको उस चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो आपने कितना रेट से पे करना चाहिए? 5 या 18? वाई 18? बिकॉज पे करके आपको क्रेडिट मिलने वाला है। तो कभी भी एग्जैक्ट थंब रूल याद रखिएगा, कितना भी कोई प्रोफेशनल लॉयर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट आके यहाँ पर आपको मोटिवेट करके बोले लिटिगेट करो करके, ऑलवेज कीप इन माइंड आरसीएम के मामले में लिटिगेशन अवॉइड ही करना चाहिए। जहां पर भी डाउट है आरसीएम पे करना है क्या नहीं, वहां पे कर दो। लोअर रेट से पे करना है क्या हायर रेट से पे करना है? क्रेडिट मिलता है तो यस, सो आरसीएम इज एज गुड एज योर वाइफ। अवॉइड फाइटिंग, you know who will win, correct? Yes. तो अभी आर्टिकल 265 तो फंडामेंटल आर्टिकल है, बराबर है। आर्टिकल 265 इवन 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले भी था। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या आया? तो जो चीज आई दैट इज कि सेपरेट इंडिपेंडेंट पावर, या मैं कहता हूं साइमल्टेनियस पावर दोनों के पास, सेंटर एंड स्टेट के पास, टू लेवी जीएसटी आया। उसके पहले क्या था? द पावर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो 1950s में अगर आप जाओगे उसके, बिकॉज उस टाइम का एरा अगर आप कंपेयर करोगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों पावर दिए गए कि स्टेट को अलग, सेंटर को अलग? दोनों को पैरेलल पावर क्यों नहीं दिए गए जैसा अभी दिया गया? क्यों उसको 70 साल लगे? एनी गेसेस? बहुत ही लॉजिकल उसका आंसर है। एंड अगेन ये फोरसाइटेडनेस था अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। दे ऑलवेज न्यू कि 600 राजे रजवाड़े अगर साथ में आके हम स्टेट बनाने वाले हैं, एंड अगर रेवेन्यू सोर्स के ऊपर, अगर फाइनेंशियल के ऊपर अगर झगड़ा होगा, किसका क्या कौन सा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो वो कंट्री कभी बन पाएगा क्या, एक साथ आ पाएगा क्या? तो उन्होंने क्या बोला कि भैया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी आता है ना, वो सेंटर लेगा, लेकिन वही गुड जब बेचे जाएंगे तो टैक्स कौन लेगा? स्टेट। बराबर है। तो उन्होंने डिवीजन कर दिया प्रॉपरली, ताकि स्टेट के पास खुद का रेवेन्यू भी आए, स्टेट खुद इंडिपेंडेंट भी हो जाए, फाइनेंस के लिए पूरा सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, और सेंटर के पास कैपेबिलिटी भी नहीं था, फंड्स भी नहीं थे, बराबर है, एंड झगड़ा भी ना हो पाए। तो उसके लिए उन्होंने पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखा था पावर। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपन कि जो भी ट्रांजैक्शंस थे, जो सिंपल ट्रांजैक्शन थे, जो गुड्स के अलग, सर्विस के अलग, वो धीरे धीरे वो एक रहे, अलग अलग रहे क्या? फॉर एग्जाम्पल बुक्स, आप पहले बुक्स खरीदते फिजिकली, अभी आपको पता है फिजिकली जो आपको बुक मिलता है अमेजॉन किंडल पे, आपको डिजिटली भी वही बुक मिलता है। तो नाउ आप बताइए वो बुक जो है वो गुड्स है कि सर्विस है? जो गाने की कैसेट और सीडी हम लेते थे वही अभी स्ट्रीम होता है स्पॉटिफाई पे, वो गुड्स है क्या सर्विस है? जो कार पहले हम खरीदते थे, लीज पे लेते थे, रेंट पे लेते थे, वही अभी आपको एक्सेस मिल जाता है थ्रू ओला उबर, तो वो गुड्स है क्या सर्विस है? बराबर है। यानी कि जो लाइन था ट्रांजैक्शन का, गुड्स एंड सर्विस का, वो ब्लर होने लग गया था। तो वहां पर ऑलरेडी स्टेट सेंटर फाइट कर रहे थे। अपने को जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट जो आज हम यूज करते हैं, वो टाटा वगैरह का फोटोन का डोंगल वगैरह आता था ना, वो हम यूज करते थे। तो भारतीय एयरटेल का, कर्नाटक हाईकोर्ट का उसके ऊपर जजमेंट है, डिस्कशन है कि जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं वो गुड्स है क्या सर्विस है करके। बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने बोला वो गुड्स है। क्यों? बिकॉज जो इंटरनेट है ना, वो कुछ डेटा बिट्स डाउनलोड करता है, अपलोड करता है, तो उन्होंने बोला ये गुड्स है, बिकॉज इट हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज गुड्स, यू कैन स्टोर दैट, यू कैन ट्रांसफर दैट, तो उन्होंने बोला ये गुड्स है करके। ये आर्ग्यूमेंट है, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके आए थे हाई कोर्ट में, बराबर है। तो जैसे ही ये फाइट होनी चालू हो गई, गवर्नमेंट को लगा दिस इज द राइट टाइम दैट वी शुड हैव अ लॉ व्हिच इज साइमल्टेनियसली टैक्सिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दैट इज हाउ आर्टिकल 246A, यानी कि जो अपना अलग अलग लाइन था पटरी ट्रेन का, वो एक साथ आ गया। और जिसके थ्रू जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आया कॉन्स्टिट्यूशन में,
दैट वाज आर्टिकल 246A, जिसको बोला जाता है साइमल्टेनियस पावर वाज गिवन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेवी जीएसटी। अभी 246A का जो टर्मिनोलॉजी है वो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हर एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा। यहाँ बोला गया है आर्टिकल 246A इज अ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर जीएसटी लिखा है क्या, स्पेशल प्रोविजन ऑफ जीएसटी लिखा है क्या, व्हाट दे आर राइटिंग स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू। तो ये वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट मीन्स इट इज इन रिलेशन टू जीएसटी, नॉट ओनली ऑफ जीएसटी फॉर जीएसटी। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, ऑफ प्रीतम मौर्य फॉर प्रीतम मौर्य वर्सेस इन रिलेशन टू प्रीतम मौर्य, क्या फर्क है? इन रिलेशन टू में हो सकता है मेरे भाई बच्चे वगैरह सभी आ जाए, फॉर प्रीतम मौर्य ऑफ प्रीतम मौर्य बोला तो सिर्फ मेरे लिए आएगा। तो इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया विथ रिस्पेक्ट टू। विथ रिस्पेक्ट टू इज एज गुड एज इन रिलेशन टू, बराबर है इन रिलेशन टू जीएसटी, यानी कि जीएसटी के रिलेशन में ये स्पेशल प्रोविजन है। एंड नीचे भी उन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड यूज किया है, लेकिन उसके पहले हम लैंग्वेज देखते क्या है। सब क्लॉज 1, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर आर्टिकल 246 एंड 254, जो मैंने कहा ना रिपग्नेंसी, यानी कि अगर स्टेट सेंटर के लॉ में फाइट हुआ तो मेन लॉ किसका सस्टेन करेगा? सेंटर का। तो वो लिखा गया है 254 में, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर आर्टिकल 246 एंड 254 सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, बिकॉज वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के बारे में बोलता है। लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट शैल हैव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। यहां पर भी आप देखेंगे पावर क्या है? टू मेक लॉज ऑफ जीएसटी नहीं, फॉर जीएसटी नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी है। अभी ये प्रोविजन को ध्रुव किशन मग्गू करके दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें चैलेंज किया गया, और क्या बोला गया कि जो पावर है इट इज ओनली टू कलेक्ट एंड लेवी जीएसटी। आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते जीएसटी में, जीएसटी ऑफिसर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। आपका काम क्या है? सिर्फ लेवी करो, कलेक्ट करो, दैट्स इट, या रिकवर करो उसका प्रॉपर्टी बेच के, बट आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रोविजन को चैलेंज किया गया, बोला कि 246 से आपको पावर ही नहीं देता। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो पावर है वो क्या है? शैल हैव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी, यानी कि जीएसटी के रिलेशन में पावर है। तो जीएसटी के रिलेशन में लेवी, कलेक्शन, रिकवरी तो आएगा, बट अगर कोई टैक्स इवेडर है उसको जेल में डालना है तो वो भी पावर उसमें आ गया। गेटिंग मी? तो ये चीज को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है, बिकॉज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज विथ रिस्पेक्ट टू। अभी उसके बाद क्या वर्ड है? जीएसटी। तो आप बताइए पहले जीएसटी, ये जो वर्ड है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वर्ड को जीएसटी लॉ में कहीं पर डिफाइन किया गया है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू प्रैक्टिस इन जीएसटी? या काम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, बराबर है। तो बताइए जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये जो वर्ड है ये डिफाइन किया गया है क्या जीएसटी एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पर डिफाइन किया गया है क्या? आंसर इज यस। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर है तो जो वर्ड है जीएसटी उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 366 सब क्लॉज 12A में। और किस तरह से डिफाइन किया गया है? जीएसटी मीन्स एनी टैक्स, पहले तो वो क्या है? इट्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स, सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो मीन्स एनी टैक्स, तो पहले तो मीन्स यानी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूड्स लिखा है क्या? नहीं। प्लस वो जो टर्मिनोलॉजी है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखते हैं, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई, यानी कि जब तक सप्लाई होगा नहीं तब तक टैक्स लग सकता है क्या? आंसर इज यस और नो। आप मुझे बताइए
अगर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कोई सर्विस दे रहे हो और कोई क्लाइंट 1 अप्रैल को आपको एडवांस भेज देता है सर्विस का, और आप सर्विस देने वाले हो अक्टूबर में, तो आप जीएसटी कब भरने वाले हो? अप्रैल में या अक्टूबर में? अप्रैल में। पहले तो 1 अप्रैल को आया तो आप बोलोगे सर अप्रैल फुल कर रहे क्या, बिकॉज एडवांस कैसे आ गया? ये तो 3-4 साल बाद आने वाला था, गलती से भेज दिया। बराबर है, काम तो अक्टूबर में होने वाला है, तो एडवांस आया तो टैक्स पे करना है। बट यहाँ पर टर्मिनोलॉजी क्या है? टैक्स ऑन सप्लाई। सप्लाई तो हुआ ही नहीं। सप्लाई हुआ है क्या? तो टैक्स पेबल है, बट टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन के बेसिस पे सेक्शन 13 पे हम टैक्स एडवांस पे करते हैं ना। तो अगर किसी ने टैक्स नहीं पे किया है सर्विस पे, और अगर आपको कंटेंशन लेना है, आर्गुमेंट लेना है, तो आपको यहाँ पर आपको आर्गुमेंट मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पर लिखा है क्या? एग्रीड टू बी सप्लाइड, सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी सप्लाइड, ऐसे भी लिखा है क्या? मेड और एग्रीड टू बी मेड। वो कहाँ लिखा है? सेक्शन 7 में, एक्ट में। लेकिन जीएसटी जहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? ओनली ऑन सप्लाई। तो अगर नहीं पे किया है तो आर्गुमेंट लो, ऐसा नहीं कि पे करना बंद कर दो। अरे गेटिंग है, बराबर है। या अगर जख्म हुआ है तो उसकी दवाई है, ऐसा नहीं कि दवाई है इसके लिए जख्म करना है आपने को। यस, सो मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई। तो हर वर्ड को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एंड देन इट सेज सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और सप्लाई ऑफ बोथ। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप बिल्डर से, डेवलपर से फ्लैट खरीद रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बिफोर कंप्लीशन, एंड आपने 1 करोड़ का फ्लैट बुक कर दिया, तो बिल्डर या डेवलपर आपको जीएसटी लगाएगा क्या नहीं लगाएगा उस फ्लैट के ऊपर? लगाएगा 5%। बट एप्लीकेबल है क्या? यस और नो? इज इट एप्लीकेबल? जीएसटी एप्लीकेबल है क्या? ध्यान से पढ़ो, यही प्रोविजन। सप्लाई ऑफ व्हाट? 3 ही चीजों के ऊपर टैक्स है। कौन सी 3 चीजें? गुड्स, सर्विस, बोथ। ये छोड़ के किसी के ऊपर टैक्स है क्या? आंसर इज नो। तो पहले बताइए, जब बिल्डर से आप फ्लैट ले रहे हो, आर यू गेटिंग गुड्स? सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स आपको दे रहा है क्या वो? आर यू गेटिंग अ सर्विस? आपको आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह का सर्विस दे रहा है क्या वो? और आर यू गेटिंग बोथ? बोथ मिल रहा है? बोथ मिल रहा है? बिल्डर के पास से बोथ यानी एक ही चीज मिलती है, दुख दर्द। बोथ मिल रहा है क्या आपको? बोथ का यानी मतलब क्या है? बोथ यानी कितने? हाउ मेनी? 2। यानी कि अगर आप किसी को बोलोगे मैरिड जो पर्सन है, तुम बोथ ऑफ यू ज्वाइन मी फॉर लंच, यानी पति पत्नी ना, पति पत्नी और वो तो नहीं, करेक्ट है ना? बोथ यानी 2 टुगेदर। बट व्हेन यू बाय अ फ्लैट, हाउ मेनी थिंग्स यू गेट? यू डोंट गेट 2 थिंग्स टुगेदर, you get actually 3 things together. Undivided share of land. जो नहीं पीते बोल रहे हैं होना चाहिए इमीडिएटली, उससे अंदर का बाहर आ रहा है। तो हाउ मेनी ऑफ यू सीन द इनवॉइसेस कि जिसके ऊपर जीएसटी लगा है? हम बोलोगे कि सर जीएसटी भूलने के लिए तो पीते हैं, वो इनवॉइस में फिर से देख लिया तो और तो पेग लगानी पड़ेगी।
हाउ मेनी ऑफ यू सीन जीएसटी ऑन दोस इनवॉइसेस? और क्या रेट से, 5% या 18%? मुझे लग रहा है कोई लोग अपना मोबाइल या बिल चेक कर रहे हैं, जेब में है क्या लेटेस्ट। तो यहाँ पर पहली चीज जो प्रोविजन है, व्हाट इट रीड्स, इट सेज एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई। इट इज नॉट सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर, इट इज सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर। तो सप्लाई में इन आवर व्यू नॉट ओनली सेल but also service will be covered, and additionally it is not two separate transactions, that is sale of liquor and service or serving of liquor. It is one single supply. and अगर आपके स्पेसिफिकली प्रोविजन में लिखा गया है कि लिकर के ऊपर अगर जीएसटी नहीं लग सकता तो डायरेक्टली भी नहीं और इनडायरेक्टली भी उसके ऊपर applicable नहीं हो सकता, because it is not two transactions but it is one transaction only. Am I clear? बराबर है? तो ये सेम लॉजिक आप एडिशनली काफी जगह ले सकते हो। सेम लॉजिक जो डेवलप प्लॉट्स के आपने देखे रहेंगे इश्यूज, फॉर्चुनेटली अभी तो सर्कुलर आ चुका है, पर सर्कुलर जब नहीं आया था या कोई टैक्स पेयर सॉरी या टैक्स अथॉरिटी बोलता है कि नहीं सर्कुलर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर भी आप ये आर्गुमेंट ले सकते हो कि कोई भी पर्सन जब डेवलप प्लॉट बेच रहा है, भले उसने इनवॉइस में या जो भी एग्रीमेंट में लिखा है 40 लाख रुपए प्लॉट का 10 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस करके 50 लाख का प्लॉट है, तो कोई भी पर्सन सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस ले सकता है क्या कि भाई मेरे पास प्लॉट लेने के पैसे नहीं है 40 लाख, मैं सिर्फ डेवलपमेंट लेता हूँ 10 लाख? पॉसिबल है क्या? आजकल वैसी परिस्थिति तो वही है ना, प्लॉट तो ले ही नहीं सकते ना? तो प्रैक्टिकली that is not possible, and that's the reason it is basically two supplies, two things supplied together. अगर प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं है, so in our view you can take a contention or view कि इंसिडेंटल के ऊपर भी टैक्स नहीं आएगा, particularly when the incidental supply is intrinsically connected with the main supply, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। तो am I clear? तो आप बोलेंगे एक आधा एग्जाम्पल है क्या क्लोजली कनेक्टेड नहीं है ऐसा? तो जो लिकर वाला एग्जाम्पल है उसमें आपने चखना के लिए चखना मंगाया, बराबर है, से आई डोंट नो लाइक से पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली जो भी है वो मंगाया, तो आप बोलोगे कि नहीं उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज इट इज इंट्रिंसिकली कनेक्टेड, उसके बिना तो जाता ही नहीं। इन रिलेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू है क्या वो? आंसर इज नो। आर यू गेटिंग मी? तो आपको भी देखना पड़ेगा कहाँ पर जो सप्लाई वो इंटेंसिकली कनेक्टेड है और कहाँ पर वो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट टू सप्लाई से। है ना क्लियर? परफेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन और आपको एक जगह हेल्प करेगा और वो है टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। बिकॉज जैसे हमने देखा आर्टिकल 366 सब क्लास 12 क्या बोलता है? जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। 3 वर्ड्स है, ये 3 वर्ड्स में प्लीज नोट करिएगा सिर्फ गुड्स वर्ड एंड सर्विस वर्ड डिफाइंड है। बोथ वर्ड डिफाइंड है क्या? बोथ वर्ड ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है ना जीएसटी एक्ट में। What is defined in the GST Act is basically composite and mixed supply, but not the word both. Are you getting me? बराबर है। तो अभी जो गुड्स का डेफिनेशन है एंड जो सर्विस का डेफिनेशन है वो आपको 2 जगह दिखेगा। जीएसटी एक्ट में भी गुड्स को डिफाइन किया गया है एंड सर्विस को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 52 एंड सेक्शन 2 सब क्लॉज 102। गुड्स एंड सर्विसेज को जीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। एट द सेम टाइम गुड्स का डेफिनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखेगा, आर्टिकल 366 सब क्लॉज 12 एंड सर्विस का आर्टिकल 366 सब क्लॉज 26A। तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा डिबेट होने वाला है, जो डिस्कशन आप करने वाले हो, वो है डेफिनेशन ऑफ सर्विस। बिकॉज आप सबको पता है टीडीआर, अगर आपको डेवलपर क्लाइंट है
तो TDR का सबसे बड़ा इशू आप सब लोग हैंडल करने वाले हो, फाइट करने वाले हो। काफ़ी सारे लोगों ने अगर टैक्स भरा नहीं है उनको नोटिस मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, बराबर है, तो वहाँ पर शो कॉज नोटिस वगैरह आएगा। तो वहाँ पर ये फंडामेंटल इशू रहने वाला है कि वेदर डेवलपमेंट राइट जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वेदर इट इज़ ए सर्विस, तो उसको अगर आपको कंटेस्ट करना है तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको हेल्प कर सकते हैं। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। गुड्स का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूसिव तरीके से दिया गया है। इट रीड्स एज गुड्स इंक्लूड्स ऑल कमोडिटीज, मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स। तो पहली बात तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बराबर है। जब हम देखते हैं दूसरा डेफिनेशन सर्विस का, आर्टिकल 366 ब्रैकेट में 26 से, हाउ इट रीड्स, बहुत सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है। इट रीड्स एज सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो वैसे तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। बट जितना सिंपल डेफिनेशन होता है उतना ही वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज लीगली जब आप बहुत सारी चीज़ ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हो ना तो देन काफ़ी सारा कंटेक्स्ट छूट जाता है। और इसीलिए जब अपन बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन अपना 1,45,000 वर्ड्स उसमें क्यों लिखे गए हैं, जबकि USA में जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 5,000 वर्ड्स थे और हमारा 1.5 लाख वर्ड्स, क्यों एलेबोरेट किया गया इतना? Because if you mention something explicitly, it is much better for somebody to read and understand. If you don't, then you have to read beyond the lines or read in between the lines, which is more difficult. And that's the reason जो सर्विस का डेफिनेशन है समझ यानी कि क्विकली एक ही सेंटेंस है, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, बट उसका स्कोप अभी बहुत ही ज़्यादा वेग हो जाता है, बिकॉज पहले इट इज लिखा है मीन्स, यानी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दिया है, means anything other than goods, anything other than goods। ऐसा लिखा है क्या? everything other than goods। Are you getting me? everything other than goods नहीं लिखा है, means anything other than goods। जो other than goods है वो कंटेक्स्ट देता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन विच इज सिमिलर टू गुड्स हो सकता है, but if it is not qualifying as goods, then it will qualify as a service। तो ये बिल्डिंग ICAI का करे पूरा बिल्डिंग के बिल्डिंग कंप्लीशन वगैरह इसका आ चुका है, अगर ये बेच देते हैं, अज्यूम करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन गुड्स करके क्वालिफाई होगा क्या? बिल्डिंग इज बिल्डिंग गुड्स, इज इट कमोडिटी, मटेरियल, आर्टिकल और समथिंग सिमिलर टू दैट? नो। देन सर्विस का डेफिनेशन क्या बोलता है? मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो फिर बिल्डिंग सर्विस हो गया ना, बट वो इलॉजिकल हो जाएगा। प्रीतम मौर्य, एम आई गुड? आई मे बी गुड बट नॉट गुड्स। तो इफ यू से आई एम नॉट गुड्स, देन करेक्ट, तो इलॉजिकल हो जाता है। इसके लिए हमको कंटेक्स्ट समझना जरूरी है, ये क्यों लिखा गया था एनीथिंग अदर देन गुड्स। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आर्टिकल 366 जो हमने लिख के दिया ना आपको, तो उसमें एक आर्टिकल है सब क्लॉज 29A जिसको डीम्ड सेल बोला जाता है। तो मैं आपको डेफिनेशन का बैकग्राउंड देता हूँ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द सर्विस डेफिनेशन नीड्स टू बी रेड। और ये बहुत, भले ये वाइड डेफिनेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वाइड डेफिनेशन नहीं है, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज अ वाइड डेफिनेशन, बट इट इज नॉट अ वाइल्ड डेफिनेशन और इट इज नॉट अनलिमिटेड इन नेचर। आपको होता है ना वाइड एंड अनलिमिटेड या इनफाइनाइट, इसमें फर्क है, बराबर है। सो दिस इज अ वाइड डेफिनेशन बट नॉट अ इनफाइनाइट वन। तो कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। जब शुरुआत में 1950s में एक इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था ज्ञानंद डंकरले के केस में, द इशू वाज कि वेदर स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स। बिकॉज पहले जो टर्मिनोलॉजी था कॉन्स्टिट्यूशन में
वहाँ पर एंट्री नंबर 48 था, वहाँ पर लिखा गया था टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो जो वर्ड थे वो क्या थे? सेल ऑफ गुड्स। जो पर्सन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी आपका प्लॉट है और आप किसी मुकदमे कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे हो कि भैया यहाँ पर आके बिल्डिंग बना मेरे लिए या कंपाउंड बनाओ मेरे लिए, तो लेबर लेके आता है, मटेरियल लेके आता है, तो गुड्स लेके आ रहा है, सर्विस लेके आ रहा है, दोनों एक साथ बना के दे रहा है। तो क्वेश्चन था कि जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो whether state government can levy taxes on works contract. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क्स यानी बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली। तो पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले 2 जजमेंट आए थे। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया था ज्ञान एंड डंगर लेवी केस में, एंड राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आया था भूरामल एंड कंपनी की केस में। एक जजमेंट में मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू लेवी टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स व्हेन यू आर एक्चुअली सेलिंग गुड्स। If you do works contract, then this is an indivisible contract. You cannot separate goods portion, नहीं goods के ऊपर टैक्स लगेगा। जबकि भूरामल एंड कंपनी में राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू लेवी टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो वेदर सेल ऑफ गुड्स इज इन डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म और इन एनी अदर फॉर्म इंक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो गवर्नमेंट देन सेल ऑफ गुड्स के ऊपर भले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करके आप बिल्डिंग बना के दे रहे हो, तो जो गुड्स पोर्शन है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है, बिकॉज इन ऑल फॉर्म्स। तो मैटर क्या सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज 2 कॉन्ट्ररी हाई कोर्ट के जजमेंट थे, तो 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ज्ञान एंड डंकर लेवी के केस में, आपने नाम सुना रहेगा जजमेंट का, कि भैया ये इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1 सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। टैक्स पेयर बोल रहा है ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट बोल रहा है ये सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट है। In our view, it is indivisible contract, and you do not have power to levy taxes on these kind of transactions under the entry of sale of goods. Because आप इसको sale of goods नहीं बोल सकते, because आपको ये भी पता रहेगा sale of goods एक्ट करके भी एक था, है ना, आज भी है, उसमें भी sale of goods यानी टिपिकली मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। तो उन्होंने बोला जब बिल्डिंग बन जाती है तो इमूवेबल है ना, तो पहला सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर में गवर्नमेंट हार गए, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो टैक्स लगा पाए क्या 1958 में? आंसर वाज नो। देन स्लोली और 1-2 मैटर आए सुप्रीम कोर्ट में। होटल इंडस्ट्री का एक मैटर आया कि जब होटल में फूड सर्व किया जाता है उसके ऊपर सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला दिस इज सेल ऑफ फूड या सेल ऑफ गुड्स, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। वहां पर टैक्स पेयर ने बोला दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, because we are serving the customer, so as part of my service I am providing food, so this is not sale of good, जिसके ऊपर टैक्स लेगा, वहां पर भी टैक्स पेयर जीत गया। तीसरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया एवी मयप्पन के केस में। मैं आपको एग्जांपल से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। दैट पर्सन वाज सेलिंग ट्रक्स, सेल ऑफ ट्रक के ऊपर जीएसटी या उस टाइम पे वैट लगता था, सेल टैक्स लगता था, तो उसने बोला कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग ट्रक्स आई विल गिव ट्रक्स ऑन लीज फॉर 99 ईयर्स। तो टैक्स किस पे लगेगा? सेल ऑफ ट्रक पे। व्हाट ही वाज डूइंग? रेंटिंग ऑफ ट्रक नाउ 99 ईयर्स। तो उसने टैक्स भरा नहीं, मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज नो, बिकॉज टैक्स इज पेबल ओनली ऑन सेल ऑफ गुड्स, नॉट ऑन रेंटिंग ऑफ गुड्स। तो इस तरह से इन सीरीज ऑफ जजमेंट द गवर्नमेंट वाज सेइंग दिस इज अ सेल ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन, और टैक्स पेयर क्या बोल रहा था? दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ सर्विस, देन सप्लाई ऑफ फूड इज अ सर्विस, रेंटिंग इज अ सर्विस। ऐसा करके ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस द टैक्स पेयर वाज विनिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए 1982 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया डीम्ड सेल का, जहां पर ये सब एक्टिविटी को डीम्ड सेल बोल के उसके ऊपर सेल टैक्स या वैट लगाया गया, बराबर है। तो ये कंटेक्स्ट अगर आपको समझेगा तो अभी आपको पता चलेगा ये क्यों लिखा गया है, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स।
Because in earlier decades, the taxpayer was taking argument that this transaction is what? Other than goods. Because उस टाइम पे एंट्री क्या थी? टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स. तो सेल ऑफ गुड्स करके क्वालिफाई होगा तो टैक्स लगेगा. सो टैक्स पेयर की जो लॉयर थे, they were always saying it is other than goods. उस कंटेक्स्ट में ये डेफिनेशन दिया गया है. बराबर है. So the time as a taxpayer you will say it is other than goods, the government will say okay no problem, it is a सर्विस. और इसीलिए वो सर्विस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी तो टैक्स पेबल है ना. पहले सर्विस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स पेबल नहीं था. तो इसके लिए जो लॉ मेकर्स थे, लेजिस्लेचर्स हैं, जिनको पूरा ये हिस्ट्री पता है, उन्होंने जो ड्राफ्ट किया डेफिनेशन इस तरीके से ड्राफ्ट किया. इसके लिए उन्होंने वाइड रखा है. बट वाइड है, अनलिमिटेड नहीं है. अगर आप उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री कंटेक्स्ट समझोगे तो आपको समझेगा ये नैरो डेफिनेशन है. ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड वाला नहीं है, इनफाइनाइट वाला नहीं है. आर यू गेटिंग मी? बराबर है. टीडीआर के कंटेक्स्ट में और एक दो चीज़ें. तो इसके लिए पहली बात तो टीडीआर डेवलपमेंट राइट्स, कैन यू रियली से इट इज अदर देन गुड्स, और विल यू से इट इज वेरी क्लोजली अटैच्ड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी? बराबर. इफ इट इज क्लोजली अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, then that transaction, should it qualify as a service or should it qualify as a transaction in immovable property only? तो आप बोलेंगे सर शेड्यूल 3 में तो वो लिखा है ना सेल ऑफ लैंड ओनली. एक्सक्लूजन किसको दिया है शेड्यूल 3 में? सेल ऑफ लैंड को, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी को. बट जब सेल ऑफ लैंड वर्ड यूज किया गया है, लैंड विल ऑल्सो इंक्लूड्स राइट्स देयर इन. अगर लैंड में राइट्स ही नहीं है, आपको मैं बोलता हूँ 100 एकड़ की जमीन है बट आपके पास उसके कोई राइट्स नहीं है, आपको जमीन का मैं कागजात बना के दूंगा लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप लेंगे जमीन? लैंड ऑलवेज मीन्स दैट देयर इज अ राइट देयर इन आल्सो. प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है. जैसे मैंने आपको बोला शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट है. स्टेट लिस्ट में आप लिख लीजिएगा सीरियल नंबर 18 and serial number 49. Serial number 18 specifically talks about rights in land and serial number 14 talks about land and building, जो state list में आते हैं. What about the transfer of leasehold rights in land? Because I think there are some ये सभी चल रहे हैं जजमेंट्स, अभी इशू चल रहे हैं करके. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आर्गुमेंट या कंटेंशन आप ले पाओगे अगर आपने पे नहीं किया है तो. अगर आप टुडे आके अगर एज एडवाइजर पूछोगे पे करना चाहिए क्या नहीं, वन वर्ड आंसर फॉर दैट इज यस. बराबर है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट टू यू, इफ टैक्स इज नॉट पेड देन व्हाट कंटेंशन यू कैन टेक फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी कंटेंशन और आर्गुमेंट विच यू कैन टेक एंड एज वेल एज फ्रॉम द जीएसटी एक्ट. बराबर. उसी के लिंकेजेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हाउ टू प्रैक्टिकली यूज इट. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समझना फिलोसफी थोड़ी टॉपिक है, हमको समझना है इस तरह से तरीके से, सो दैट आई कैन टेक समथिंग फॉर माई क्लाइंट फ्रॉम दैट. बराबर है. राइट नाउ अगेन लीज के ऊपर वगैरह कपल ऑफ मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है. मुझे लगता है मायरा यश हॉस्पिटैलिटी करके गोवा का एक इशू है जो 9 मेंबर बेंच के पास पेंडिंग है राइट नाउ. वी हैव टू वेट एंड वॉच. But the possibility which we feel or believe is much higher कि that matter could be decided in favor of government, particularly lease वगैरह related issues में. जो development rights है वहाँ पर थोड़ा tilt है tax payer के, but 50-50 है करके. इसके लिए going forward तो पे कर दीजिएगा, कोई ये issue ही नहीं है. Past में अगर आपने पे नहीं किया है, litigate करना है, fight करना है तो these are the argument contention which you can take. बराबर है. तो आप बोलेगे सर फाइट क्यों करना है अगर हारने वाले हैं तो? Any cases why to fight? इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, पेनल्टी भी आएगा, तो भर देना चाहिए ना. नॉट एवरी टाइम वी डिसाइड शुड द क्लाइंट पे और नॉट. अगर उसके पास पैसे नहीं तो पहला रीजन. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट विच मोस्ट ऑफ अस कंप्लीटली मिस, अमनेस्टी. अगर अमनेस्टी आया जो सबका विश्वास करके आया था ना SBI 2019 में,
वो आया 2019 में। अगर 2018 में किसी टैक्स पेयर ने 5-10 करोड़ लाइबिलिटी का इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ भर दिया 2018 में, स्कीम आया 2019 में, तो उसके साथ स्कीम हुआ कोणाची शाळा झाली तर बिचारा इमानदारीने त्यांनी 2018ला भरले, बरोबर आहे का नाही? त्यामुळे इवन अमनेस्टी, मी हे नाही म्हणते की गॅरंटी आहे अमनेस्टी येण्याची, पण पॉसिबिलिटी आहे. जर टॅक्स पेअरकडे पैसे नसेल तर लिटिगेशन मध्ये जर तो मॅटर लाईव्ह राहिला तर टॅक्स पेअर तर डेड नाही होणार, बरोबर आहे ना? जो तो मॅटर लाईव्ह राहिला, उद्या जर अमनेस्टी आली, अमनेस्टीमध्ये किती डिस्काउंट असतो? एसवी एल्डर्स मध्ये किती होता डिस्काउंट? पेनल्टी इंटरेस्ट वेव, टॅक्सवर किती होतं बेनिफिट? 50% आणि 70%, म्हणजे 30% टॅक्स भरला तरी कम्प्लिटली वेव, बरोबर आहे? आम्ही वेस्ट बेंगॉलची एक अमनेस्टीमध्ये मे मध्ये, मला वाटतं 2023 मे मध्ये आम्ही एक क्लायंटचं फाईल केलं होतं, काहीतरी 1.25 करोडची, 1 करोड 20 लाखाची लायबिलिटी ती अमनेस्टीमध्ये तिथं फक्त भरायची होती, इंटरेस्ट पेनल्टी काही नाही आहे. आणि मार्च 2008-9चा वगैरे मॅटर होता, त्या इंटरेस्ट पेनल्टीसोबत ते 3-4 पट झालं असतं, म्हणजे 5-7 करोड भरायला लागले असते. आम्हाला फक्त भरावं लागले 15% टॅक्स डिमांडच्या. किती झाले ते? 1 करोड 15% तर 18 लाख, त्याच्यात ते 5-6 लाख आधी भरलेले होते काहीतरी प्री डिपॉझिट, ते पण ऍडजस्ट करून 10-12 लाख आले फक्त. म्हणजे कुठं 7-8 करोड आणि कुठं 5-10 लाख, एवढी तर लिटिगेशन कॉस्ट त्याच्यापेक्षा जास्त झाली असते. तुम्ही हे नाही म्हणत की पेंडिंगच ठेवा. जिथे वी नो टॅक्स पेअर कॅनॉट पे, इज नॉट विलिंग टू पे, इज विलिंग टू पे बट डज नॉट हॅव डीप पॉकेट्स, पैसेच नाही आहेत, देन सर्टनली दीज आर द कंडिशन आर्ग्युमेंट विच कॅन पुट अक्रॉस. बरोबर आहे? अमनेस्टी घेऊ नका की अमनेस्टी आली तर मी भेल म्हणून, पण हे आर्ग्युमेंट घेऊन तुम्ही लिटिगेशनमध्ये तो मॅटर नक्कीच पेंडिंग ठेवू शकता. आय एम क्लिअर? बढली सर क्युरियोसिटी सर फक्त अच्छा 2017 मध्ये व्हॅट डिपार्टमेंटनी फॉर एक्झाम्पल काही लायबिलिटी एका क्लायंटला हे केली. इट वॉज नॉट सर्व्ड अपॉन, इट वॉज नॉट नोन टू क्लायंट. वन फाईन मॉर्निंग इन एप्रिल 2024 the client got to know that there is a liability. Now he doesn't know why this liability is. बरोबर. किती आहे? इवन ती खूप अमाऊंट आहे, म्हणजे 2 वर्षाची 3-3.5 करोड आहे आणि ग्रुपची मिळून जवळ 8-7.5 करोड रुपये. पण कधी नोटीस सर्व नाही झाली किंवा काहीच नाही? त्याचं म्हणणं नाही झाली. नाउ वी आर गोइंग टू गो टुमॉरो अँड सी व्हॉट इज द केस. अच्छा अच्छा. बट दे कॅन लाईक इन दिस केस कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आपण जो की बाबा मला राईट टू इक्वॅलिटी नाही मिळाली, जर का मला मिळाली असती तर मी गेलो असतो आणि यस यस यू कॅन टेक, यस एकदम बरोबर स्टँड करू शकता. जस्ट एक क्युरियोसिटी आहे, ही विल द क्लायंट पे अस फॉर द ॲडवाइस? जस्ट लाईटर नोट मी सांगतो तुम्हाला. अशा केसमध्ये पहिलं तुम्ही काम काय करायला पाहिजे? पहिल्यांदा फाईलला RTI स्पेसिफिकली विचारा. ही जी नोटीस आहे तुमची, तुम्ही म्हणता आज व्हॅट डिपार्टमेंट तुम्ही सर्व केली ना, तर पहिल्यांदा कोणत्या ऑफिसरला सर्व केली, नेम डेजिग्नेशन. सेकंड, कोणाला सर्व केली, नेम ॲड्रेस ऑफ द क्लायंट. तिसरा, कोणाला डिलिव्हर केली. चौथं, त्या डिलिव्हर ज्यांनी घेतली त्याचं सिग्नेचर. पाचवं, त्याची एक्नॉलेजमेंट रिसीट. सहावं, त्याचा डेट अँड टाइम. बरोबर आहे? हे स्पेसिफिकली स्पष्टपणे विचारा RTIच्या थ्रू. दॅट शुड बी युअर फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स. तुम्ही भेटून इंटरॅक्शन करून जवळपास पॉसिबिलिटी आहे की ते जनरलमध्येच जाईल. जाण्याच्या पण आधी मला तरी वाटते पर्सनली RTI करा किंवा भेटल्यानंतर करा, पण RTI करा. कारण की अमाऊंट जर एवढी मोठी आहे, बरोबर आहे, आणि जर ती लायबिलिटी आहे रिकव्हरीची, तर डायरेक्टली रिकव्हरीला देऊन टाकताल तर ते अगेन इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड. कारण की स्टेटमध्ये तर मी बघितलेलं आहे की ते प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट म्हणजे त्यांना म्हणजे खेळणं वाटतं लिटरली. इट इज व्हेरी सॅड पार्ट. म्हणजे पहिल्यांदा ते अटॅचमेंट करतात आणि मग नोटीस देतात, असं आहे. मग शो कॉन नोटीस देतात, आधी अटॅचमेंट करतात तिकडं. इट इज अदर वे राउंड. सो यूज RTI इन युअर फेवर, गेट द डेटा, सो देन यू विल बी इन अ पोझिशन टू पुट अक्रॉस डिफेन्स. कित्येकदा असं झालेलं आहे इन द पास्ट केसेस वी हॅव सीन की नोटीस भेटली होती, तो पर्सन त्या म्हणजे तो कंपनी सोडून जाण्यासाठी नोटीस पिरियडवर होता,
नोटीस भेटली, हा पर्सन नोटीस पिरियडवर आहे, यांनी नोटीस घेऊन ड्रॉवरमध्ये ठेवली आणि विसरून गेला किंवा शेअरच नाही केली, जे काय इश्यू असतात आणि देन नंतर कधीतरी कळालं की डिलिव्हर झाली होती. सो यू गेट दॅट डेटा. जर तुमच्या त्या पर्सनचं नाव बरोबर असेल, सिग्नेचर बरोबर असेल, त्यांनी हँडओव्हर तो पर्सन रिलेव्हंट असेल, तर सिक्युरिटी मॅनला किंवा वॉचमॅनला दिली तर यू कॅन स्पेसिफिकली से बाबा हा थोडी राईट पर्सन आहे, ऑथोराइज पर्सन आहे टू रिसीव्ह द नोटिसेस. आणि असं झालेलं आहे. वी हॅव टेकन दॅट कंडिशन ऑल्सो. इवन सर्व्हिस टॅक्समध्ये तर आम्ही म्हणजे यू विल बी एबल टू अंडरस्टँड की कशा प्रकारे केसेस फाईट करायचे असतात. वी हॅड टेकन अप वन केस की सर्व्हिस टॅक्समध्ये जी डिलिव्हरी ऑफ नोटीस होती ती एक टाईमपर्यंत स्पीड पोस्टनं अलाउडच नव्हतं. इट वॉज ऑलवेज बाय रजिस्टर्ड एडी. तर बॉम्बे हायकोर्टचं एक जजमेंटसुद्धा आहे ज्याच्यामध्ये बॉम्बे हायकोर्ट हॅड सेड दॅट यू कॅनॉट send notices through speed post. You have to use registered AD only, registered acknowledgement due. तुम्ही स्पीड पोस्टने पाठवू शकत नाही. तर आम्ही हे पण कंटेन्शन किंवा आर्ग्युमेंट घेतलं. सो वेन यू नो दॅट लिगली यू आर ऑन अ weaker footing, you have to try to find out all the likely contentions and arguments which you can take. आणि तिथे मग हे सगळे प्रोविजन्स तुम्हाला हेल्प करू शकतात. Are you getting me? बढिया. चला आता लेट अस से ते 7 का 10 दिवसात देतात, पण जनरली देतात. कधी कधी नाही दिलं तर लगेच फॉलोअप टाकायचा तो पण भेटतं. मीन्स वी हॅव सीन टिपिकली वी गेट नाव डेज तर जास्त प्रोएक्टिव्ह झालेला आहे आणि ऑनलाईन आहे. व्हर्च्युअल पण म्हणजे काही इश्यूज नाही, ऑनलाईन भेटून जातात क्विकली है ना. जा ऑनलाईन टाका, त्याच्यानंतर पर्सनली एक कॉपी इन्वर्ट करा. जेवढ्या गोष्टी तुम्ही क्विकली कराल दॅट इज बेटर फॉर यू ॲट द अर्लिएस्ट. आता त्याच्यानंतर आणखी एक प्रॅक्टिकल केस आय विल पुट अक्रॉस टू यू. Let us say during lockdown there was a client of yours ज्यांनी 10 करोडची सर्व्हिस एक्सपोर्ट केली. ही एक्सपोर्टेड सर्व्हिसेस ऑफ 10 करोड रुपीज. लॉकडाऊनमध्ये तर तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे बाबा IT चा बिझनेस तर बूममध्ये होता. म्हणजे काम तर भेटायचं, पैसे भेटायचे की हा वेगळा प्रश्न आहे. काम तर भेटायचं. त्या पर्सनला US मधून 10 करोडचं सॉफ्टवेअरचं काम भेटलं. त्याने सॉफ्टवेअर सर्व्हिस दिली सुद्धा. बट लॉकडाऊनमध्ये जो ज्या कस्टमरला ज्या कंपनीला सर्व्हिस दिली त्या कंपनीचा फाउंडर डायरेक्टर ही पास्ट अवे आणि मग यांचे जे 10 करोड येणं होते ते 10 करोड कधी आलेच नाही. सो द क्वेश्चन फॉर यू इज व्हॉट दिस टॅक्सपेयर शुड डू नाउ. ही हॅज एक्सपोर्टेड सर्व्हिसेस ऑफ 10 crore but he has not received money. Should he pay now GST, that is IGST at the rate of 18% on that 10 crore? एक्सपोर्ट वर GST नाही का? एक्सपोर्ट वर नाही आहे, पण एक्सपोर्ट मध्ये कंडिशन आहे. If the export, if you want to say that my transaction qualifies as export, then one of the condition is that you should receive consideration in convertible foreign exchange. Now, if you have not received convertible foreign exchange, then whether the transaction will qualify as export under section 2(6) of IGST Act. The answer is no. The officer will say this is not an export transaction. You pay us IGST plus interest penalty. आपण खाया पिया कुछ नाही, ग्लास थोडा भरा. एक तर 10 करोड भेटले नाही, त्याच्यावर इकडे टॅक्स भरा, इंटरेस्ट भरा, पेनल्टी, ते 4-5 करोड तिथेच लायबिलिटी. येस. And I think it stands that even though it is not qualified as export, but consideration element is lacking, hence it is not a supply, I am not able to pay it. Okay. So one of the contention which is that consideration I have not received. So tax is not payable. But how will you take that contention? Because section 7 CGST Act, supply definition, what it says, supply includes all forms of supply made or agreed to be made. Made or agreed to be made for a consideration. So it was agreed that consideration would be received, but finally it was not received. That is what the officer will say. There is a counter to that also, which is in your favor. You can say if eventually consideration is not received, means still it is a free supply only.
and GST is payable only when there is a supply for a consideration. If eventually it is turning out that there is no consideration, then it is still not for a consideration, because made or agreed to be made, ये दोनों वर्ड जो है, made means consideration is already paid, agreed to be made, there is a certainty that the person will pay, agreed to be made. But if that eventually does not pay, that certainty goes away. बराबर है. So there is no consideration, then you can take a contention, it is not a supply transaction only, because supply will only take place when it is for a consideration. Are you getting me? So one contention you can take, but obviously officer will take counter contention to that, because agreed to be made करके वो बोलेगा नहीं आपको तो पे करना पड़ेगा. Then what will you say? तो वहाँ पर हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउटसाइड इंडिया है तो IGST एक्ट में सेक्शन 7 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज ए में इस टाइप के ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोला गया है. तो आपको IGST पे करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज नॉट क्वालिफाइंग एज एक्सपोर्ट. सर्विस टैक्स में स्पेसिफिकली लिखा गया था, इफ द सप्लाई इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, इफ यू प्रोवाइड ए सर्विस इन द टैक्सेबल टेरिटरी तो ही टैक्स पेबल है. तो GST में अभी हम क्या करेंगे, GST भरना है, और आपको ऐसे केसेस भर भर के मिलेंगे, स्टार्टअप्स के, सॉफ्टवेयर के, बराबर है, इन डेज टू कम. तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगेन हेल्प कर सकता है. सिंपल आर्टिकल 269A का पहला आप अगर आप जब सब क्लॉज है उसका लैंग्वेज पढ़िएगा, व्हाट इट सेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, बराबर है. तो ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है क्या? Yes. यस और नो? Deemed yes, but otherwise. डीम्ड यस बट अदरवाइज नो. पहली बात तो इंटरस्टेट वर्ड लिखा गया है, इंटर कंट्री नहीं, ध्यान से पढ़िएगा. इंटर स्टेट है, इंटर कंट्री वर्ड नहीं है. दूसरा जो नीचे आपका एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन. डीम टू बी जो लिखा है, इट इज ओनली फॉर इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन. यानी कोई डीमिंग फिक्शन भी नहीं है एक्सपोर्ट के लिए. तीसरा अगर ऑफिसर बोलेगा कि आपने क्लाइंट कहाँ पर था, USA में, तो इंटर स्टेट यानी यूनाइटेड स्टेट्स. बराबर है ना? तो आपको बोलना पड़ेगा फॉरेन स्टेट उसमें नहीं आएगा, बराबर है. So you have to find all the likely contention with authorities can take and you have to fight it out. Plus आपको आर्टिकल 366(26)(b) में कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन दिया है स्टेट का, टिपिकल इट इज इंडियन स्टेट ओनली. प्लस आपको आर्टिकल 245 का भी आप हेल्प ले सकते हो, जहाँ पर लिखा है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड. पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो कंट्री के लिए, स्टेट लॉ बनाता है तो स्टेट के लिए, बराबर है. तो कोई बोलेगा सर तो इंडिया से सप्लाई किया ना तो GST लगेगा, बराबर है. एंड देयर आर कपल ऑफ जजमेंट्स आल्सो जो टैक्स अथॉरिटीज के फेवर में है, जैसा GVK का जजमेंट है. बट यहाँ पर हमको कंडीशन लेने पड़ेंगे. तो GVK का जजमेंट बोलता है वेयर द टैक्सेबल इवेंट टेक्स प्लेस. बट यहाँ पर हमको जजमेंट के कंटेक्स्ट में 2011 का GVK का इंडस्ट्री का जजमेंट है, उसको काउंटर करना पड़ेगा. GVK का इनकम टैक्स का जजमेंट है, जहाँ पर सोर्स या रेसिडेंसी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है. GST is a destination based consumption tax. If the destination is outside India, whether the country will get right to collect taxes on those transactions, बराबर है. When there is no specific provision under Article 269A. प्लस अगर आप पूरे ट्रांजैक्शन का नेचर देखोगे, नेक्सस देखोगे, कितना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है कंट्री के साथ, तो आप देखो सप्लायर इंडिया में, बाकी सब कुछ बाहर है. रिसिपिएंट आउटसाइड, कंजम्पशन आउटसाइड, पेमेंट वाज लाइकली टू बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, प्लस दैट ट्रांजैक्शन विल बी सब्जेक्ट टू इंपोर्ट ड्यूटीज या रिवर्स चार्ज इन दैट कंट्री, वो भी आउटसाइड. तो ये कंटेंशन लेके
बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की, यू कैन पुट अक्रॉस डिसेंट फाइट। और मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में ये कंटेंशंस सक्सेसफुली आपके लिए केस जिता सकते हैं, बराबर है। मैं क्लियर, ये पॉसिबिलिटी है, बट ये तभी होगा जब आप कंटेंशन लोगे, और वो कंटेंशन लेने के लिए आपको प्रोविजन ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। सो आई होप नाउ ऑल ऑफ यू विल एग्री दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल सर्टनली हेल्प यू take right argument or contention before the authorities at the earliest stage or at the stage of show cause notice. So that was from my side. Now if there are any Q&A, we can take those question and answer. If not, we can conclude the session because 12 बज गए हैं सबके। Yes. Any questions in the audience? Yeah, just a minute. Before that, just one quick question. From GST perspective only, I had one question which I discussed also. If appeal is filed and if the officer is not responding from like say 8 months, even if mail has been sent and even letters has been sent, then do we have anything, appeal for refund hai? They are not responding to the commissioner. So mail has been sent, even we've gone and met state. पण त्याला किती म्हणजे काहीच हे म्हणजे नंबर ऑफ बिकॉज 8 months ऑलरेडी आर डन. They are giving the same answer की मागचे अजून केसेस पेंडिंग आहेत, पेंडिंग आहेत. Because I have seen demand cases फटाफट होतात, रिफंडचे I guess purposely they are. Yeah, what is the question? Hello. I think today what we discuss is, as you pointed out in many cases, that there are certain provisions in the constitutions like 245, 246 and this 269A and all this, which are something deviating from what is actually written in the, or what is mentioned in the CGST or IGST. Yes, yes. And in many cases, even just this export case just we discussed, Correct. you mentioned that we have to take a stand that the constitution Is not empowering. is not empowering you to do that, sir. But just practical issue that how much is argument at a authority level or at a commissioner appeal level or it will sustain. एकदम बरोबर. जसं मी आउटसेटला सांगितलं की आपलं कोणीही आर्ग्युमेंट कंटेन्शन इथे ग्राउंड लेवलला ऐकून घेणारच नाहीये. इट इज फॉर शुअर, बट स्टील यू हॅव टू पुट अक्रॉस युअर कंटेन्शन्स सो दॅट फायनली when the matter will be really heard, when it will be really heard, where in the tribunal, that time some other party, that is the counterparty, should not take objection कि these contents were not taken before the adjudicating authority. That the reason in नवीन अपीलचे ग्राउंड जे तुम्ही घेऊ शकत नाही. That is a bigger devil for you. तर त्याच्यामुळे I know, see in general, see again मुझे I can put it across. To some extent, injustice is inbuilt in the entire system only, because how you expect a person who is giving you show cause notice for him to say that the show cause notice which I gave was wrong? If he dropped the show cause notice, what is he saying indirectly? It's a wrong show cause notice, no? Won't he senior then say why you are giving show cause notice unnecessarily? बराबर है? Or he is giving notice and somebody else is, his colleagues only is adjudicating, but they are working as a department. Similarly, when the matter goes before say commissioner appeal or any departmental officer who is working with the department and he has also worked as a commissioner jurisdiction, he knows that they are commissioner audit. They also know that they have issued the show cause notices because these points were discussed with them and now they are adjudicating. So the system itself to some extent, no,
it is not giving the right justice, I would say, at a ground level. But at a tribunal level, because if you really look at the performance of CSTAT in excise days, service tax rate, you have fantastic or amazing judgments, which were even upheld by the Supreme Court. So based on the past performance as a professional, the way I have seen last 15-17 years, I have a very good confidence or trust, I would say, in the entire tribunal system, wherein I know independent judges or the tribunal judges will actually decide the matter based on the law for the very first time. And then obviously all these contentions which are putting it across before them, they will hear it out and then pass a reasonable judgment, including based on principles of interpretation, based on Constitution of India and all. And that's the reason you have to prepare it right now, because you are not fighting or putting this contention for them to decide. You are putting this contention so that tribunal can finally decide in your favor. That way. Yesterday, And this point I was, must mention in last 15-17 years, no, we were also lucky or fortunate enough in couple of cases. We got very good relief even at a commissioner appeal level as well in couple of cases based on our contentions. We have to put across that way. because Personally, like the way of interaction, so basically that keeps the entire conversation going. And yeah, the punches with your legal statements and others. So next time I hope सब आपका bill check करना कितना टक्का लग रहा है आपको 18% या 5% on the liquor and even the chakna. So now I'll ask C. Rajesh Agarwal sir to kindly present a word of thanks. Good afternoon, friends. On behalf of Pune branch and all participants, I extend thanks to Preetham for his enlightened session on very important topic on Constitution. As rightly mentioned on 14th April. Really thank you, Preetham, for accepting our invitation. Main role in drafting this structure is also Preetham involved in structuring this program. We have added faculty. In faculties, we Raghu Raman sir, Vaidisaran sir and all. But because of their personal reason, they could not join this course. But definitely we will have one more litigation series and invite these all faculties who could not come join this course this time. Thank you, Preetham, for all support. Thank you.